So guys, thank you very much for joining us, by the way. And there's a small presentation. If you guys cannot see it properly, please tell me. So I just put down the notes जो कि सबके काम के लिए होंगे, because we rolled out this form जो कि आप लोगों ने भरा था, और उस form के अंदर you guys asked some basic questions which are there already in this presentation. तो पहले हम कुछ ओवरव्यू के ऊपर बात करेंगे, विच विल बी सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए विल बी ऑफ अबाउट 20 मिनट्स इश. उसके अंदर हम बात करेंगे अबाउट सम इंट्रो, सम प्रेजेंटेशन, कि ये प्रेजेंटेशन किस बारे में. एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट बेसिक क्वेश्चंस अबाउट स्टडी एंड वर्किंग इन जर्मनी. चाहे आप फ्रेश स्टूडेंट हो या आप डायरेक्ट जॉब के लिए आना चाह रहे हो जर्मनी, सो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल. In section B, we will only look out for questions. सही है, so because that is what we want to focus on. कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं. So we also wanted to have Miss Nida Aslam here, but she is not here yet. So I would not like to introduce her. Maybe she can come and do it by herself, but I can start from myself. I basically did my bachelor's in computer science from IB Karachi in 2017. तो मैं बहुत पहले का ग्रेजुएट हूँ और अभी भी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ फ्रॉम जर्मनी. मुझे 4 साल हो गए यहाँ पे. ये लंबी डिबेट है कि अभी तक 4 साल में क्यों मास्टर्स चल रहा है, बट आई एम स्टिल परसुइंग इट. And I work as a full-time software developer at Spotify in Germany. And before in Karachi, I was working at Affinity as a software developer. So this is my introduction. We can talk about Sidra now. Sidra, over to you. Yes. So if Saif feels कि उसका बहुत पुराना हो गया bachelor's, मेरा उससे भी पुराना हो गया, because I completed my bachelor's from IBA in 2015. Then I worked for a bit in Pakistan in Lucky Cement. My focus was more towards finance at that time. Also helped to launch what you know as Kia Lucky Motors in Pakistan now. Then I came to Germany. मैं मास्टर्स करने आ गई थी. मैंने मास्टर्स इन मैनेजमेंट परस्यू किया फ्रॉम Mannheim Business School. I also parallelly started working in SAP as a working student, and now I'm currently working since 2020 as a project consultant with SAP since then. Thanks, Sidra. Shamir. Hello everybody, thank you for joining. So मेरा नाम शामिर काजी है. I'm a graduate of LUMS Accounting and Finance 2016 का. And then I worked in Pakistan for 3 years as a product manager. And the job included pricing strategy, traveling to a few countries. And then I started exploring master's options. So I went to ESSEC Business School in Paris for a master's in data science and business analytics. Worked a bit over there as a part-time data scientist. Now I'm part of Zalando. Zalando is the largest e-commerce player in Europe, and I'm part of, I'm a senior product analyst over there, part of the interview committee. I'm responsible for the stakeholder management and the on-site part of the interview process, and also part of the product team over there. So yeah, looking forward to your questions. Thanks, Shamir. Last but not the least is Sama Tanveer here. Hello everyone. I'm a 2016 graduate from LUMS. मेरा economics में bachelor's था. उसके बाद मैंने पाकिस्तान में काम किया नीलसन में. तो पहले मैं थी consumer insights team में. फिर मुझे अपनी प्रोफाइल और डेटा साबित करनी थी, तो मैं एनालिटिक्स में ट्रांसफर लिया. फिर वहाँ से मैंने अप्लाई किया बुडापेस्ट फॉर मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स. बुडापेस्ट मैंने इसलिए किया क्योंकि वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान जितना चीप है. वहाँ पे CU अमेरिकन यूनिवर्सिटी है. 8 मंथ्स में 9 मंथ्स में आपका मास्टर्स हो जाता है, और बुडापेस्ट की जॉब मार्केट बहुत अच्छी है. तो मैंने वहाँ से बिजनेस एनालिटिक्स किया, और ये कोर्स यूजुअली फ्रेश कमर्स को लेते हैं जिनको बिल्कुल टेक्निकल नॉलेज नहीं होती. तो मैंने वहीं पे जाके RSQ सब कुछ सीखा. फिर वहाँ मैंने बुडापेस्ट में 2 years काम किया एज अ डेटा एनालिस्ट एट मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल. फिर उसके बाद आई केम टू जर्मनी, और यहाँ पे मेरा कोई 4 months का जॉब सीकिंग प्रोसेस था. तो मैंने बहुत ज़्यादा कंपनीज अप्लाई की, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, कुछ अच्छी ऑफर्स भी आई, और फिर इन दी एंड मैंने ज्वाइन किया डिग्रीड इज एन अमेरिकन कंपनी. यहाँ पे मैं उनकी रिमोट हायर हूँ. मैं उनकी प्रोडक्ट टीम में काम करती हूँ एज अ प्रोडक्ट इनसाइट्स इंजीनियर. All right, thanks Sama. आपके नाम के नीचे शामिर काजी लिखा आ रहा है, but it's okay. So people can get confused. It's all right. The last person here who also helped me to organize this event is Miss Nida Aslam. She's also here. Maybe you can tell us something about yourself, Miss Nida. Sorry, we had to start because people said
to start. No, it's okay. Can you hear me? Yes, we can. Assalamu alaikum, everyone. Dr. Nida here from IBA. I've been associated with IBA for more than like 15 years as a faculty. So the transition from a young faculty to a doctorate has been immense. The learning and experiences. I have also worked as a student counsel at IBA for 2 years. Um, the agenda of today's session, which I have been discussing with Sarah for a number of weeks, I'm glad that it has materialized and looking forward to it. A lot of students in IBA and keeping in mind that how the world has evolved and it's no more just one country or one continent. People are looking for options and avenues to expand their horizons. So I'm extremely grateful to Seth and the panel who has joined in. And students have a number of concerns. They have a number of issues and challenges that they face when they're pursuing higher degrees or they're looking for a job. So I look forward to this session. If there's any question pertaining to something in IBA or the academics, the thing is that IBA in last 2 years, it has just last comment of mine. It has now been it's not just IB anymore. We have 3 different business schools. So we have School of Business Studies, we have School of Economic Social Sciences, and we have School of Computer Studies. And in August, we are also launching MS Marketing at IBA. The first intake will take place in August. I'm also program coordinator of that program. So anyone who has questions pertaining to that can feel free to connect with me. So thank you so much. That's nice, Miss Nida. Thanks a lot. And I hope कि इस तरह के sessions हम और करें. Because Sure. I also want to do such sessions क्योंकि मैं खुद computer science का हूँ, तो I also want to do such sessions for CS. But at the same time, I think business के graduates यहाँ पे हैं अच्छे खासे IB alumni. Maybe why not do this? Absolutely. All right, thanks a lot, guys. And now let's jump into 2 sections here. The first section will be about study. उसके अंदर कुछ pointers हैं जो मैं लिखे हुए हैं, and then we will talk about some work related things. For example, किस तरह की jobs होती हैं, salary ranges क्या होती हैं, किस job processes क्या होते हैं यहाँ पे, अगर आपको direct पाकिस्तान से यहाँ पे आना है तो क्या क्या challenges हैं, क्या नहीं है. On the other hand, if you're a student, we will talk about some fees, some types of university क्या होती हैं यहाँ पे, किस तरह के courses होते हैं, jobs किस तरह की होती हैं, working student job कितने पैसे आप कमा सकते हो, and stuff like this. So first I will give some overview and then I will also ask the panel to ask some questions. तो कुछ बहुत बेसिक चीजें होती हैं कि फीस और फाइनेंसेस क्या है अगर आपको जर्मनी में मास्टर्स करना है या पीएचडी करना है फॉर एग्जांपल. तो ओवरऑल द फीस इज फ्री. यहाँ पे पढ़ाई फ्री होती है, बट you need at least 10,000 euros to put it into a German bank so you can get the visa. यहाँ पे इस तरह का चक्कर होता है और हर महीने आपको 861 euros वापस मिलते रहते हैं. So the money you put in is not actually a money from the university. It is a money which you get back. प्रोसेस क्या होता है यहाँ पे जर्मनी पढ़ने का? यहाँ पे 2 मेन सेमेस्टर्स होते हैं, विंटर सेमेस्टर, समर सेमेस्टर. और यहाँ पे यूनियसिस नाम की वेबसाइट होती है जहाँ पे यू अप्लाई एंड सेंड योर ऑल ऑफ योर पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स टू. और उससे पहले आपको भेजने से पहले आपको अपनी डिग्री कन्वर्ट करवानी, वेरीफाई करवानी होती है फ्रॉम द HEC. उसमें भी टाइम लगता है 1-8 महीना. जस्ट पुट इट हियर. And then what UNISS does is they convert your Pakistani CGPA to a German CGPA. And once everything is done, you apply to the universities, you get the acceptance, then you make the blocked account and then you apply for the visa. तो अगर आपके पास पैसे नहीं है, for example 10,000 euro जो कि around 20 लाख रुपए बनते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो that is fine. You can do it later once you get the admission from the university. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे ना नॉर्मल यूनिवर्सिटीज नहीं होती. जिस तरह हमारे यहाँ तो हर कोई ना यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे वो नहीं होता. यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस होते हैं. यहाँ पे FH होता है, HS होता है, यूनिवर्सिटेट होता है. मे बी आई कैन आस्क सिद्रा अबाउट दिस, एंड सिंस शी इज अ बिजनेस ग्रेजुएट जिन्होंने जर्मनी से ही मास्टर्स किया है, शी कैन टॉक अबाउट अ डिफरेंस बिटवीन Fachhochschule, Hochschule एंड द यूनिवर्सिटेट. Yes, so यहाँ पे ये सीन होता है कि जो यूनिवर्सिटीज होते हैं यूजुअली उनकी स्टडीज आर अ लिटिल बिट मोर थ्योरेटिकल एंड रिसर्च ओरिएंटेड. तो अगर आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो फॉर एग्जांपल फॉर अ मास्टर्स इन मैनेजमेंट या बिजनेस रिलेटेड स्टडीज या एनीथिंग, what you will study will be a little bit more theoretical, research oriented, क्योंकि यहाँ पे जो लोग ऐसा studies pursue करते हैं, sometimes they also want to go towards a little bit more academic fields like PhD वगैरह करना चाहते हैं या academics में enter होना चाहते हैं. जो Hochschules और Fachhochschules वगैरह होते हैं, they are usually a little bit more
प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, और उनका मकसद ये होता है कि जो वहाँ पे लोग जाएंगे वो थोड़े प्रैक्टिकल स्किल सेट सीखेंगे और जॉब मार्केट में एंटर करेंगे। और उन सिद्रा, आप इसकी कुछ एग्जांपल दे सकती हैं? प्रैक्टिकल से क्या मुराद है आपका? यार प्रैक्टिकल से ये मुराद है कि फॉर एग्जांपल अगर आप जाओगे यूनिवर्सिटी आर्ट में, तो आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखने पड़ेंगे, आपको जो थीसिस लिखना पड़ेगा वो बहुत रिसर्च ओरिएंटेड होगा, आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसमें कम होगा। जब आप हॉक्शूले वगैरह में जाओगे तो आपके प्रैक्टिकल काम ज्यादा होगा, या कंपनीज के साथ काम ज्यादा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होगा। आप यूनिवर्सिटी आर्ट्स में भी कंपनी के साथ काम कर सकते हो, कभी कभी आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो, आप डिफरेंट चीजें कर सकते हो, लेकिन जनरली इनका नेचर ऐसा होता है। लेकिन बिजनेस फील्ड्स में जितना मैंने देखा है, यूजुअली वो ज्यादातर कोर्सेज यूनिवर्सिटी आर्ट्स में ही होते हैं। ये जो डिफरेंस ज्यादा आता है वो कंप्यूटर साइंसेज या दूसरी इंजीनियरिंग की डिग्रीज की तरफ ज्यादा आता है। हमारे जो बिजनेस के कोर्सेज होते हैं वो ज्यादातर यूजुअली यूनिवर्सिटी आर्ट्स में ही होते हैं। तो हमारे जो यूजुअली मास्टर्स होते हैं जो फ्री वाले होते हैं, वो यूजुअली यूनिवर्सिटी आर्ट्स में होते हैं। जो एमबीएस टाइप की साइड पे चले जाते हैं वो फिर प्राइवेट सेक्टर में होते हैं। All right, which brings me to another question. Since you talked about MBAs, something about different types of masters which are available for business students, business graduates जिन्होंने bachelor's किया, वो किस तरह के masters कर सकते हैं यहाँ पे यूरोप के अंदर या mainly Germany में? Definitely. So about the type of masters as well, I went through the same. जब मैं ACF से graduate हुआ तो there were a few options. एक तो masters in management होता है जिसको MIM mostly refer करते हैं. There's a masters in international management and then masters in consulting or different specializations maybe आ रहे होते हैं. These are some kind of advanced masters. इसके अंदर जो masters in business analytics भी है वो इसी category में आ जाता है. So that's MSc management, MSc analytics, whatever you want to call it. Then ये वाली जो degrees हैं, especially अगर मैं पेरिस की बात करूँ तो they have a ranking system और काफ़ी different well laid out उनके course structures हैं और काफ़ी उनका alumni network वगैरह के बारे में details भी हैं. In Germany भी बिल्कुल same procedure follow होता है. It's just that के थोड़ी सी जो masters in data analytics हैं, yeah, masters in analytics would sometimes be data science. So you just want to look out in the course structure के actually course structure क्या. So rather than going on to the title of the course, have a look at the course. Sama, would you like to add some points here? हाँ, let's say for me जब मैंने मास्टर्स चूज किया, मैंने जानबूझ के एनालिटिक्स मास्टर्स चूज किया क्योंकि मुझे पता था मुझे कोई टेक्निकल नॉलेज एज सच नहीं है, तो मैं एटलीस्ट मास्टर्स में कुछ सीख लूँ, मैं आर सीख लूँ, स्किल सीख लूँ। मुझे मैनेजमेंट का शौक था, तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने PMP किया, व्हिच इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। अब उसका अलमना नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इससे मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मेरे पास मैनेजमेंट का मास्टर्स नहीं है, क्योंकि एक्चुअली जब मैं पोजीशन अप्लाई करती थी तो व्हाट दे नीड में टेक्निकल स्किल्स होते थे, जैसे आपको डेटा समझ आ रहा हो, आप ये कर सको, आप इनसाइट्स बना सको। और गुड टू हैव में लिखा होता था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, और कभी कभी लिखा होता था नाइस टू हैव PMP, प्रिंस और ये सारी सर्टिफिकेशंस। और मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा फायदा हुआ ये एज अ सर्टिफिकेशन करके, बिकॉज सर्टिफिकेशन का नाम ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है देन हैविंग अ यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट डिग्री, का इस पे हर कोई यूनिवर्सिटी को नेसेसरली नहीं जानता। सिद्रा से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, these two next questions are from सिद्रा एक्चुअली, कि आपने MBA की बात की, they are paid क्योंकि पाकिस्तान में mainly people go for MBAs, and also can you talk about some language requirements for these programs, because computer science में तो English के बहुत हैं, but I'm not sure how is it working for business graduates. जहाँ तक MBA कंसर्न है, yes, usually these programs are paid. For example, मैंने जिस यूनिवर्सिटी से किया है वहाँ का भी MBA प्रोग्राम है, बट वो पेड होता है। वो प्रोग्राम स्ट्रॉन्गर होता है, ऑफ कोर्स यू हैव अ लॉट मोर कंपनी अलायंसेस, यू हैव अ लॉट मोर पार्टनरशिप्स देयर, यू हैव अ लॉट मोर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, बट वो पेड होता है। सो इफ यू वांट टू लुक इनटू दैट, आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने पैसे देने ही हैं तो रादर लुक इनटू अदर कंट्रीज एज वेल व्हिच आर मोर इंग्लिश फ्रेंडली। जहाँ तक मास्टर्स, इसका रिप्लेसमेंट ऑप्शन होता है, आप अगर MSc कर लो, वो एज आई सेड बिफोर वो थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड होता है, बट नॉनदलेस आफ्टर दैट अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट देयर जॉब्स एनीवेज। मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूंगी, जहाँ तक फ्री और फी की बात थी वो सही है, लेकिन बाडन-वुर्टमबर्ग जो एक स्टेट है जर्मनी की, ओनली वहाँ पे 1500 यूरो पर सेमेस्टर एडिशनल फी है। तो इफ यू आर लुकिंग एट यूनिवर्सिटीज जनरली इट विल बी फ्री एक्सेप्ट फॉर दैट वन स्टेट। दूसरे जहाँ तक फील्ड्स की बात आती है, इन HR, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग या जनरली जो हमारे मैनेजमेंट रिलेटेड फील्ड्स हैं, बिजनेस रिलेटेड फील्ड्स हैं, वहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज का बैरियर आ जाता है।
probably जब आप studies करने आओगे तब इतना नहीं होगा, because there are programs which are available in English, so you can still do the programs. लेकिन once you start entering into the job market, it becomes a little bit more difficult अगर आपको German नहीं आती to start working in the field, as compared to other areas, like अगर आप computer science की degree है, थोड़ी technical degrees हैं, तो आपके लिए थोड़ा difficult हो जाता है. So I would like to also ask the same question from you, Sidra, क्योंकि आपने यहीं से मास्टर्स किया है, कि पढ़ाई के साथ यहाँ पे जो वर्किंग स्टूडेंट जॉब्स होती हैं, कितना आसान होता है ढूंढना? थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे सकता हूँ लोगों को, व्हाट इज अ वर्किंग स्टूडेंट जॉब? जैसे जर्मनी में लिमिट होती है 20 आवर्स पर वीक की टू वर्क, एंड यू कैन गेट पेड अराउंड 1000 euros ऑन एवरेज एज अ स्टूडेंट टू वर्क फॉर 20 hours every week, 80 hours every month. But the question to Sidra is कि इंग्लिश लैंग्वेज में ढूंढना कितना मुश्किल है या इतना आसान है? इतना मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल तो होता है ऑफ कोर्स, लेकिन मिल जाती हैं फिर भी वर्किंग स्टूडेंट पोजीशंस आपको, अगर इफ यू अप्लाई इनफ, एंड स्पेशली इन द बिगर सिटीज, राइट? सो आपकी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज आपको हर कोने खुदरे में, हर छोटी सिटी में भी मिलेगा, बट यू हैव टू प्ले इट स्ट्रेटेजिकली कि अगर आप मास्टर्स अपना कहीं कर रहे हो तो आप ये भी देख लो कि उस सिटी में जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है, या फिर उसके आसपास की सिटीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है कि आप वहां आके वर्किंग स्टूडेंट कर सको. तो अगर आप अप्लाई करोगे, मिल आपको कहीं ना कहीं जाएगा, एंड इट्स एक्चुअली रेकमेंडेड कि आप थोड़ा सा ऐसा रूट लो जिसमें आप या तो वर्किंग स्टूडेंट पोजीशंस लो या इंटर्नशिप्स करो व्हाइल यू वर्किंग, बिकॉज व्हाट इट डज इज कि अगर आपकी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग ना भी हो, यू गेट योर फुट थ्रू द डोर, आपके वहां पे रेफरेंस ऑलरेडी बन जाता है. तो फिर companies feel more comfortable in hiring someone who they've already been working with. अगर उसको German नहीं भी आती है तो they'll sort of make that exception for you. Okay, thanks. Shamir, since you do a lot of hiring, tell me, does university ranking matter in Germany? Yeah, so the difference I've seen between Germany and other countries, specifically talking about UK, US, France, Germany, ranking is a bit different. More or less, all the universities are considered above average, and जो है मैंने बहुत कम देखा है ग्रेजुएट्स को अपनी रैंकिंग लिखते हुए रेज्यूमे के अंदर. पेरिस में देखा है मैंने कि नंबर 2nd, नंबर 5th है दुनिया में. यूके में देखा है, बट यहाँ पे कम होता है. तो नेचुरली जो हायरिंग मैनेजर्स उनका थोड़ा सा उनका ध्यान थोड़ा कम जाता है इस तरफ. जर्मनी में ऑफ कोर्स इट रियली हेल्प्स इफ इट्स रैंक्ड, डेफिनेटली डज हेल्प, ये मैं नहीं बोलूँगा इट डज नॉट हेल्प. प्लस एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है. तो ये एज लॉन्ग एज यू हैव द स्किल्स यू कैन क्लियर द टेक्निकल स्क्रीन्स. तो एंड के इंटरव्यूज में इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से, once you want your resume to get through, उसमें फर्क पड़ता है. And Sama, what do you think? यार टू बी ऑनेस्ट, मैंने जितने भी इंटरव्यू प्रोसेसेस हुए थे, आई डिडंट हैव अ जर्मन डिग्री, तो उनको नेसेसरली मेरी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पता था अनलेस मैं उनको बताती थी कि ये है. असल में होता ये था, फर्स्ट स्टेप हमेशा उन्होंने मुझे एक टेस्ट भेजा है, लाइक रिगार्डलेस ऑफ माय रिज्यूमे, रिगार्डलेस ऑफ द एचआर इंटरव्यू हमेशा नहीं भी हुआ, मेरे पास टेस्ट आया, मुझे टेस्ट करना पड़ा है. जब तक टेस्ट मेरा टॉप कैंडिडेट्स में नहीं आया, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया ही नहीं. तो अगर मैं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से भी पढ़ लूँ और मुझे वो टेस्ट ही नहीं करना आता हो, तो मैं फिर भी नहीं इंटरव्यू लैंड कर सकती थी. और अगर मैंने, हो सकता है कि मेरे पास कोई भी मास्टर्स ना होता और मुझे वो सब चीजें आती होती हैं, मैं टेस्ट बहुत अच्छे से दे देती और मैं अपना एक्सपीरियंस मैच कर लेती, तो मुझे शायद फिर भी जॉब वो वाली मिल जाती जो मुझे मास्टर्स की वजह से मिली. ऑब्वियसली थोड़ा सा मेरी इंटरव्यू परफॉर्मेंस बेहतर हुई, मेरी टेस्ट बेहतर हुआ बिकॉज ऑफ मास्टर्स, लेकिन इतने ज्यादा आई डोंट थिंक कि वो था कि वो आप इतने पैसे खर्च करो स्टूडेंट लाइफ में आ जाओ, किसी मास्टर्स की वजह से आपको जॉब मिलेगी, वो आपको आपकी वजह से मिलेगी. All right, thanks a lot. So business analytics का question है, so maybe I can ask Sama about this. Before applying in business analytics, are there any online courses which are required? मैंने अभी इसका चैट पे भी आंसर दिया है, और आई थिंक ऑनलाइन कोर्सेज का ये कि अगर आप ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट भी करोगे तो वो पहले आपको इतने बेसिक सिखाएंगे कि आप ने एसक्यूएल की कोई 10-15 क्लासेस और पाइथन की कोई 5-6 भी लेके आपने कहना यार ये तो मुझे इतनी बैक एंड जॉब लग रही है और मुझे मजा नहीं आ रहा, क्योंकि बिजनेस लोगों को ज्यादा आदत होती है लोगों से बात करने की, और मतलब वो थोड़े डिफरेंट उनकी पर्सनैलिटी होती है. तो मेरे ख्याल से अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज, अगर आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करोगे जिसमें आपको एग्जांपल्स मिल रही होंगी XYZ कंपनी में ऐसे हो रहा है, तो हाँ फिर आपको समझ आएगा. अगर आप कोर्सेज करोगे तो आप प्रिपेयर हो सकते हो, लेकिन आप अगर चूज करने के लिए कोर्सेज ले रहे हो, आई एम नॉट श्योर. Makes sense. And since you maybe Shamir or Sama, you talked about PMP, can you also add some points here?
यार मेरे PMP पास रफली मेंबर फी है $405, मेंबरशिप फी है $130 और एग्जाम सिमुलेटर आई एम नॉट श्योर अभी कितना है, मैंने दो साल पहले लिया था तो वो 300 से 500 के बीच आता है, तो ये काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट है पीएमपी की। मेरे एम्प्लॉयर ने स्पॉन्सर किया था। यूजुअली एम्प्लॉयर्स तकरीबन सारे जर्मनी में अगर आप कहो कि यार मुझे डेवलपमेंट बजट में से कुछ निकाल के दें तो सारे अच्छे एम्प्लॉयर्स यूजुअली कर देते हैं। मेरे बुदापेस्ट वाले एम्प्लॉयर ने किया था। पीएमपी का ये कि अगर आप फ्रेश आउट ऑफ यूनिवर्सिटी आप नहीं कर सकते। पीएमपी की थोड़ी सी प्री रेक्विजिट्स हैं। ओके यूजुअली वो कहते हैं कि आपके पास 36 मंथ्स हो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस और आपके पास 35 आवर्स ट्रेनिंग के हों और आपके पास एक और नंबर ऑफ आवर्स होते हैं वो उस सेक्शन के हों, तो उससे पहले आप नहीं कर सकते। टू बी ऑनेस्ट मेरे पास नहीं थे। मेरे पास मास्टर्स की वजह से मेरे एजुकेशन के हो रहे थे लेकिन उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नहीं थे। मैं एक कंज्यूमर इनसाइट की टीम में थी पाकिस्तान में, लेकिन मुझे पता है कि वो कभी भी नहीं चेक करते। वो रैंडम ऑडिट करते हैं, उनके पास कोई हजारों में एप्लीकेशन आती हैं, एक दो पिक करते हैं और यूजुअली हर कोई थ्रू हो जाता है। लेकिन आप बिल्कुल भी फ्रेश ना हो because आपके पास पे कुछ भी नहीं होगा डालने को। और Alright. इससे मुझे फायदा ये हुआ था कि जब मैं अप्लाई कर रही थी तो जॉब्स इन जर्मनी, तो मेरी सीवी ज्यादा सीनियर रोल्स के लिए पिक हो रही थी और एक दो ये हुआ था कि जो मैंने एप्लीकेशंस गई थी उनका वर्क एक्सपीरियंस ना 7 to 9 इयर्स मांगा हुआ था, जो ऑब्वियसली मेरे पास नहीं था। लेकिन क्योंकि पीएमपी का परसेप्शन ऐसा आता है ना, क्योंकि ये इतनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन है कि एम्प्लॉयर यूजुअली ये नहीं देखता कि वो अच्छा इस ईयर में बैचलर किया है तो फिर अभी कैसे इसको मिल गई ना। यूजुअली कहते हैं ओ इसके पास पीएमपी है तो ये जरूर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल होगा। और आई थिंक मेरी सैलरी नेगोशिएशन में भी काम आया था। Okay. Thanks, Amma. Sidra, what will you talk about importance of language for business graduates? ये आपका बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, कल भी आपने यार आई वुड ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि आपको अगर जर्मन नहीं आती तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। आई थिंक हम लोग जितने भी लोग इस पैनल में बैठे हुए हैं, प्लस आई नो अदर पीपल एज वेल जिनको लैंग्वेज के जर्मन लैंग्वेज के बगैर जॉब मिल गई है। मुझे मिली है, मेरी बहन को मिली है, देयर आर अदर पीपल जिनको मिली है। बट आई वुड स्टिल एम्फसाइज कि अगर आपका यू आर सीरियस अबाउट कमिंग टू जर्मनी एज अ बिजनेस ग्रेजुएट, अगर आप डिग्री परस्यू करना चाहते हो या यहाँ काम करना चाहते हो आफ्टरवर्ड्स, तो जर्मन वुड रियली हेल्प बिकॉज इट ओपन्स द जॉब मार्केट। तो अगर मार्केट में 100 जॉब्स हैं तो उसमें प्रॉबली 90 जॉब्स में जो बिजनेस जॉब्स होती हैं उसमें जर्मन रिक्वायर्ड होगी, 10 में नहीं होगी। आप अप्लाई कर सकते हो बट ये भी सोचो कि पीपल Germans would also be applying for it. There would all sorts of people who would be applying for it, right? So the competition will be that much more and it's that much more to get into those jobs. तो अगर आप सीरियस हो अबाउट कमिंग टू जर्मनी एंड वर्किंग हियर तो आई वुड रियली रिकमेंड कि अगर आप पूरी नहीं भी सीख के आ सकते C1 या B2 लेवल तक, तो एटलीस्ट A2 लेवल तक सीख के और यहाँ पे आके कंटिन्यू दैट जर्नी ऑफ इम्प्रूविंग योर language to open the job market for yourself. और regardless of that, I think generally अगर आप जर्मनी में रह रहे हो, अगर आपको लगता है कि it's like US, Canada, England जहाँ आप इंग्लिश से काम चला लोगे, it's not like that. हाँ, कुछ cities हैं जैसे बर्लिन वगैरह which are more English friendly, but still यहाँ पे हर process, even आप रेस्टोरेंट में जाते हो, मेन्यू कार्ड्स तक आपके जर्मन में होते हैं, आपके साइंस जर्मन में होते हैं ग्रोसरी स्टोर्स में। So I would really emphasize on getting started with German अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हो। But हाँ, business की field में, business jobs में, it is more important. Yeah, just wanted to add कि Sidra said 90% yes. अगर आप अभी भी LinkedIn पे job posting खोलो, you'll get a fair idea कि German requirement किस तरह है. Having said that, बहुत ज़्यादा company की style पे भी depend करता है. जो standard companies हैं, there's DHL, the Big Four, PwC, और जो कंसल्टिंग कंपनीज है मैकिन्जी, बेन, इन सब में ज़रूरत है, इंश्योरेंस कंपनीज में बिल्कुल ज़रूरत है। बट जो टेक फर्म्स हैं, स्टार्टअप्स हो गए, बिग टेक भी हो गया, उसमें जो स्टेम डिग्री के जॉब्स हैं, एनालिटिक्स, डेटा साइंस, वहाँ पे कुछ जो टेक कंपनीज है वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बट दैट्स अ सबसेट ऑफ द जॉब मार्केट। इफ़ यू इनटू दैट तो ज़्यादा रिलैक्स्ड होगा। ऑफ कोर्स इट रियली हेल्प्स टू गेट यू इंटीग्रेटेड अगर आपको लैंग्वेज आती है, बट उसमें पर से जरूरत नहीं है, रेस्ट ऑफ द जॉब्स में जरूरत होती है। सो एक चीज बिल्कुल शामिर, मैं यही ऐड कर रहा था कि जैसे कुछ जॉब्स, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं विच आर वेरी इंग्लिश सेंट्रिक, जैसे कि यार हम आवर मेन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इज इंग्लिश एंड दैट इज व्हाट दे यूज, बट इन कंपनीज लाइक SAP फॉर एग्जांपल, सिद्रा बेहतर बता सकती हैं, बट या डॉयचे बान या डॉयचे पोस्ट जो कि जिनके जर्मन और उनके ब्लड में है, या BMW हो गया और मर्सिडीज हो गया,
Daimler, ये सारी ऐसी कंपनीज है जहाँ पे वो मांगते होंगे जर्मन. सिद्रा, करेक्ट मी इफ आई यार एम या रॉन्ग. तो या ऑफ कोर्स अब तो काफी मैंने जितनी भी एसएपी की जॉब देखी है अक्सर उनमें मांगते हैं, लेकिन दूसरा पॉइंट ये होता है अगर वो ना भी मांगे ना तो आप अगर काम करते हो तो यहाँ पे अगर आपकी टीम 10 लोगों की है उसमें से 8 या 9 लोग जर्मन है एंड यू आर द ओनली वन हु डजंट स्पीक जर्मन, तो बेसिकली एवरी टाइम यू एंटर द रूम दे आर ऑल टॉकिंग इन जर्मन एंड दे विल स्टॉप एंड फिर आपसे बात होगी एंड अगर उनकी कोई और दूसरी बात है तो दे अगेन स्टार्ट इन जर्मन. तो जिनके लाइक यू सेड दीज बिगर कंपनीज जिनके ब्लड में जर्मन है तो वहां पे अगर आपको वो हायर कर भी लेते हैं विद इंग्लिश तो दे विल एक्सपेक्ट यू टू अपस्किल योर जर्मन स्किल्स रियली क्विकली और एट सम पॉइंट जैसे हमारी डेली मीटिंग्स में अब दे सेइंग कि हाँ सिद्रा अब तो तुम्हें थोड़ी जर्मन आती है ना, लेट्स डू आवर डेलीज इन जर्मन. So they will want you to do that very soon. But हाँ majority of the jobs में वो फिर मांगते हैं, but वहाँ पे requirement भी होती है कि आपको चाहिए होनी चाहिए in these bigger SAP like या DHL like companies कभी-कभी. All right. Also sir, for this जैसे मैं भी बहुत सारी business positions apply करी थी only English speaking companies, मैं दूसरी companies में apply नहीं करी थी. But even companies जैसे Delivery Hero, Zalando में भी अगर मैं marketing apply करूँ ना, वो कहेंगे आपको जर्मन चाहिए, वो कहते हैं आप हमारे एड्स कैसे करेंगी, हमारे एड्स जर्मनी में ही ऑन एयर होते हैं, यानी जर्मन में ही ऑन एयर होते हैं. तो उसमें भी जैसे स्ट्रैटेजी पोजीशंस जो मैं अप्लाई करी थी, जो मैं ऑपरेशन रोल्स अप्लाई करी थी, अगर मैं प्रोडक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर टाइप की भी मतलब इस तरह के देख रही हूँ, हाँ उनमें हो रहा है. लेकिन अगर मैं मार्केटिंग करूँ ना उसमें नहीं हो रहा था. इवन कुछ लॉजिस्टिक्स या सप्लाई चेन की भी, क्योंकि वो कहते हैं हमारे वेंडर्स को नहीं आती, तो हमें तो इशू नहीं है. HR मार्केटिंग सही कह रही है समा, बिल्कुल उनकी रिक्वायरमेंट है क्योंकि अगर और कम्युनिकेशंस बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें अगर आपको नहीं आपके अगर कंपनी में भी दोनों है इंग्लिश और जर्मन, तो अगर आप विद इन द कंपनी भी काम करते हो तो आपको दोनों आनी चाहिए. वो कहते हैं आपको इंग्लिश भी आती हो पर आपको जर्मन भी आती हो, बिकॉज आपने हमारी मार्केट में काम करना है, आपने HR में काम करना है, आपने हमारे लोगों को हायर करना है, आपको हमारे सिस्टम्स पता होने चाहिए, आपको वर्कर्स काउंसिल्स के साथ काम करना है. तो अगर आपको वो नहीं आती होगी तो आप वो काम वो वाला पार्ट अपनी जॉब का कर ही नहीं सकते हो. True. So yes. Next question is about somebody asked about engineering degrees. मेरे कुछ हैं जानने वाले, दे आर डिफरेंट इंजीनियरिंग डिग्रीज की हुई हैं लाइक सिविल इंजीनियरिंग या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग. यूजुअली ये होता है कि ये डिग्रीज जर्मन में होती है लेकिन इसमें भी आपको कहीं कहीं इंग्लिश के मास्टर्स मिल जाते हैं. बट अगेन यहाँ वाली जो मैंने देखी है इंजीनियरिंग जॉब्स वो उसमें भी थोड़ी जर्मन का इशू है. तो वो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सप्लोर करना पड़ेगा. अक्सर लोग फिर क्या करते हैं वो बैचलर से यहाँ पे आ जाते हैं, फिर वो साथ साथ जर्मन थोड़ा करके आते हैं और वो फिर अपने एग्जाम भी कुछ जर्मन में ही देते हैं. लेकिन ऑप्शंस हैं जर्मन नॉन जर्मन इंजीनियरिंग डिग्रीज की भी, बट यहाँ पे भी थोड़ा आपको इशू जर्मन का फेस करना पड़ेगा. बट अगेन डिपेंड्स ऑन द कंपनी यू आर अप्लाइंग, द प्लेस यू आर अप्लाइंग, किस किस्म का आप करना चाह रहे हो, बिकॉज इंजीनियरिंग इज ऑल्सो अ ह्यूज फील्ड. So next question is about working in big cities like Berlin, Cologne. On the other hand, working in small cities like Mannheim, Sidra. So maybe Shamil, you can start and talk something about companies which are in big cities like in Berlin, Cologne, or Munich, and then we can do some contrast on this on Sidra's point of view. So yeah, I would say 2020 and 2019 में थोड़ा cluster था of big cities and the big companies. जैसे मेरी जो company है उसका बर्लिन में head office है और एक tech office है डॉर्टमुंड में, which is a medium sized city west of Germany में. Compared to बाकी companies भी इसी तरह थी, cluster थी. But now after the pandemic काफी remote options खुले हैं, although they do require कि आपके पास फिर working rights हो. तो अगर कोई ये कह रहा है कि बड़ी सिटीज में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं वहाँ मास्टर्स परस्यू करूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी, ऑफ कोर्स ये तो मैंने यहाँ पे नोट किया है. और कमिंग फ्रॉम फ्रांस एज वेल, तो आप मेजर सिटीज़ में होते हो तो आपकी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. बट जर्मनी में एक पॉजिटिव चीज़ है कि फिर भी मैंने देखा है कि काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली मीडियम साइज कंपनीज में, जिसको मिडिल स्टान बोलते हैं ये लोग वहाँ पे होती हैं, इवन इन मिडिल टीयर शहर भी. और उनके मिडिल टीयर शहर अगर 600,000 700,000 पॉपुलेशन है तो वहाँ पे भी काफ़ी जॉब्स होती हैं. मे बी विकीपीडिया पे देख के उस शहर को लगे कि बहुत ही छोटा है पाकिस्तान के हिसाब से, बट यहाँ पे मीडियम साइज SMEs काफ़ी होते हैं. ये मेरा एक्सपीरियंस है. Sama, your thoughts? यार इसमें भी आई थिंक जो अच्छी कंपनी थी, जैसे मैं सारी बर्लिन की कंपनीज अप्लाई करी थी, उस सब की सब रिलोकेशन बजट दे रही थी,
तो मैं कहीं से भी पढ़ूँ डिडंट मैटर, ठीक है, मैं कहीं और पढ़ के पैसे सेव कर लूँ, क्योंकि जब मैं बर्लिन जाऊंगी फॉर एग्जाम्पल, वहाँ रहना बहुत महंगा है, तो मेरे पास पैसे होंगे। लेकिन आई थिंक उसमें डिफरेंस ये आता है कि जैसे सिद्रा ने भी लिखा था, आप जो 2 इयर्स आप पढ़ रहे हो या 3 इयर्स आप पढ़ रहे हो, और अगर आप छोटे शहर में हो तो आपके पास फिर कम अपॉर्चुनिटीज होंगी, या अगर होंगे तो एटलीस्ट वो जर्मन स्पीकर्स के लिए होंगी, क्योंकि फिर वो इतने बड़े शहर हैं नहीं कि उनकी वर्किंग लैंग्वेज इंग्लिश हो। तो हो सकता है जो स्टूडेंट जॉब जो आपको बड़े शहर में मिले उतनी अच्छी ना मिल सके, लेकिन वंस यू कंप्लीट योर डिग्री और अगर आपको जॉब अच्छी मिल जाती है तो वो आपको कोई भी बर्लिन रिलोकेट करा लेगा, या कोई भी आपको कहीं और रिलोकेट करा लेगा, मगर फिर आपके पास शायद उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा जितने दूसरे लोगों के पास होगा। सिद्रा, what will you say, because I do know कि SAP का ऑफिस बर्लिन में भी है and they offer English jobs. So Yes. what will you say about this? Yes, I mean SAP का हेड ऑफिस यहाँ है वॉल्डॉर्फ में, वो भी मनहाइम में नहीं है, it's still like it's nearby but it's not here। और SAP के और भी there are, SAP में म्यूनिक में भी है, and SAP is of course a global company, it's a German company but global है, इंडिया में इनका बहुत बड़ी प्रेजेंस है, चाइना में प्रेजेंस है, तो उस हिसाब से तो ऑफ कोर्स हमारी कंपनी की लैंग्वेज इंग्लिश भी है। बट जहाँ तक दूसरी बात आती है यहाँ पे कि Mannheim is a comparatively smaller city, but it's not completely a very small city, और बहुत strategically placed है, because it's very nearby Frankfurt, it's very nearby Waldorf, which is the hub for SAP, और यहाँ पे और भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि BASF है यहाँ पे बहुत अक्रॉस द रिवर। तो अगर आप छोटी जगहों पे जाते भी हो, फॉर एग्जांपल जैसे मनहाइम जिनकी 3.5 लाख या समथिंग पॉपुलेशन है, उनकी वहां पे आप ये देखो कि वो कितनी स्ट्रेटेजिकली लोकेस्ड है। फॉर एग्जांपल बामबेग हो गया जो कि न्यूरम्बर्ग के पास है, तो फिर वहां से लोग न्यूरम्बर्ग में काम करने जाते हैं, या और ऐसी जगह। लेकिन कुछ इतनी रिमोट जगह हैं कि वहां से आपके लिए पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि आप ट्रैवल करके दूसरी जगह पे वर्किंग स्टूडेंट वगैरह करने जाओ। तो इस तरह से होता है। लेकिन अगर जब आप फुल टाइम की बात करते हो तो वो तो फिर जब आप अप्लाई करोगे तो एज समा सेड वो आपको रिलोकेशन का बजट भी दे देती हैं, और फिर आप इजीली उसमें रिलोकेट कर लोगे। और फिर लेकिन जहां तक हब की बात होती है, जहां मेन जॉब्स लोकेटेड है, वो तो ऑफ कोर्स आपकी म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, कोलोन वगैरह यहाँ पे ही आपको ज्यादा मिलेंगी। बट देर आर स्मॉलर हब्स जहाँ पे फॉर एग्जांपल एसएपी, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन जर्मनी, वो यहाँ लोकेटेड है, उसने अपना ही यहाँ पे घर बना लिया, 10,000 लोगों का उनका हेड ऑफिस की स्पेस है। खैर अब तो काफी अरसे से एवरीथिंग इज ऑल्सो मूविंग अ लिटिल बिट रिमोट, तो आई एम अज्यूमिंग कि इन अभी भी इन द कमिंग ईयर्स इट विल बी स्लाइटली डिफरेंट, नॉट डिफिकल्ट, बिकॉज इवन अगर आप किसी रिमोट जगह पे बैठे होगे तो हमारा फॉर एग्जांपल एक वर्किंग स्टूडेंट बामबेग में है, एक कार्लसरूहे में है, तो वी आर ओके विद दैट, क्योंकि हम लोग अब सब रिमोट काम करते हैं। तो अगर आप अब आते हो तो आई थिंक डिपेंडिंग ऑन द कंपनी डायनामिक्स यू शुड बी एबल टू still get stuff even if you're in a very remote location. Can you also reiterate कि पढ़ाई के लिहाज से how does it make a difference कि अगर मैं किसी बर्लिन की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, on the other hand मैं मानहाइम में पढ़ रहा हूँ, या मैं वॉल्डॉर्फ में, I'm not sure if there is a university, but if I study from a small city versus a big city. यार स्टडी पर्सपेक्टिव में तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मनहाइम इज अ यूनिवर्सिटी सिटी, तो यहाँ पे आपकी इतनी बड़ी प्रेजेंस है और इतने ज्यादा डिग्रीज हैं, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी अगर आप स्टडी लाइफ देखना चाह रहे हो, अगर आप इवन इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट लाइक स्टूडेंट रिलेटेड इनिशिएटिव्स, वो भी इट्स ह्यूज, तो उसमें तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और जो यूनिवर्सिटी सिटीज होती हैं जनरली दे आर मोर इंटरनेशनल एज वेल, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स ही आ रहे होते हैं, Yes. तो वहां पे वो भी इतना मसला नहीं होता। तो हालांकि मनहाइम थोड़ा छोटा है बट इट्स प्रीटी इंटरनेशनल, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स बहुत आते हैं, यहाँ एक्सपर्ट्स बहुत आते हैं, तो उस तरह से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। बट फिर भी यू विल हैव टू लुक इन अ लिटिल बिट इनटू दिस काइंड ऑफ सिटी यू आर गोइंग टू, बिकॉज हर सिटी एक दूसरे के जैसी होगी भी नहीं। I think Mannheim Business School, वैसे just adding a point here, it's considered quite good from a business perspective, right? Yeah, it is one of the most highly ranked programs and free in that aspect programs for Europe and Germany. मैंने recently तो इसकी ranking check नहीं किया, लेकिन इसके MIM program की ranking was also used to be very high. And that is about what are the best universities for master's program? How would you say this? How would you answer this question? अगर रैंकिंग के हिसाब से देखो तो इट वुड बी मनहाइम, एंड आई थिंक देयर आर कपल मोर लाइक कोलोन में है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम हुआ करता था, उसमें यू आल्सो हैड लाइक आई थिंक अ कपल ऑफ सेमेस्टर्स अब्रॉड, इधर भी होता है।
रैंकिंग में देखो तो ये हैं, बट अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ गुड स्कूल्स लाइक गोएटे है इन फ्रैंकफर्ट, और भी हैं. अगर आप डार्ट पे जाओ तो यू कैन इनपुट एक्चुअली ऑल योर क्राइटेरिया एंड यू कम अप विद अ कपल ऑफ स्कूल्स व्हिच वुड फिट योर रिक्वायरमेंट. तो डू ट्राई योर हैंड. मनहैम थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्टर है यहाँ पे. जीमैट की एक रिक्वायरमेंट है लाइक कट ऑफ से, कि अगर आप मीट नहीं करते तो दे वोंट इवन लेट यू अप्लाई. बट देयर आर अदर स्कूल्स, तो वहां आप अप्लाई कर सकते हो. सो ये हमजा ने क्वेश्चन पूछा रिगार्डिंग CGPA, कि अगर मेरी CGPA 3 से कम है देन व्हाट डू आई डू एज अ बिजनेस ग्रेजुएट. नहीं, आई थिंक इतना मसला नहीं होता. मनहैम का जहां तक मुझे याद है कोई तो कट ऑफ था, बट आई डोंट रिमेम्बर जीपीए का क्या कट ऑफ था. लेकिन अगर यहाँ नहीं अप्लाई करते, देयर आर अदर स्कूल्स लाइक आई सेड, देयर इज लाइक आई नो, मेरी बहन ने खुद गए थे फ्रैंकफर्ट से किया है, एंड शी इज आल्सो बिजनेस ग्रेड, और उसका थोड़ा हर मार्केटिंग, CGPA her her CGPA was a lot more, but नहीं, but you still can get admission there. उनके यहाँ as such कोई वो CGPA के कट ऑफ्स इतने नहीं होते हैं. उनकी दूसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपका आई थिंक जीमैट, मतलब वो कंबाइन करके देखते हैं ना, कि अगर आपका ओवरऑल अच्छा है पैकेज तो वो फिर आपको ले लेंगे. लेकिन फॉर एग्जांपल मनहान जैसे हैं, उनके कट ऑफ्स होते हैं, दे डोंट इवन लेट यू अप्लाई इफ यू डोंट मीट सर्टेन क्राइटेरियाज. Sama, will you also talk about something कि बुडापेस्ट में क्या सीन होता है regarding CGPA में भी GMAT वगैरह यार देखते हैं, जरूरत होती है नहीं होती? यार तो मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो पब्लिक नहीं है, तो बुदापेस्ट की पब्लिक यूनिवर्सिटी के सीन काफी ज्यादा जर्मनी जैसा ही है. ठीक है, आप स्कॉलरशिप पे आते हो, आपको थोड़ी सी पैसे देने होते हैं, लेकिन बुदापेस्ट में रहना बहुत सस्ता है. मतलब 1/3 ऑफ दैट ऑफ जर्मनी होगा, इतना सस्ता है बुदापेस्ट में रहना. लेकिन मैंने वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी अप्लाई की थी. जो मेरी डिग्री है वो न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी की है. और मैं भी यही कहना चाह रही थी कि आप लोग प्राइवेट मास्टर्स से नहीं भागो इतना. शामी ने भी प्राइवेट किया, मैंने भी प्राइवेट किया है. आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन आपका मास्टर्स भी तो जल्दी खत्म होता है. आप 9 ईयर्स में फिर फारिग हो जाते हो और आप पैसे कमाने भी लग जाते हो, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है उस तरह. और जो मेरी डिग्री है उसको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था पुराना इन बिजनेस एनालिटिक्स. ठीक है, और मैंने अप्लाई किया था, मास्टर्स किए थे 3 ईयर्स पहले. मुझे पता है लास्ट ईयर जो बैचेस आए उनको 100% तक स्कॉलरशिप मिली. 100% से मेरा मतलब होता है कि वो आपको ट्यूशन फीस आपकी वेव ऑफ कर देते हैं, वो आपको अकोमोडेशन दे देते हैं, और बहुत अच्छी अकोमोडेशन है. और वो आपको मॉर्गन स्टैनली या ब्लैक रॉक टाइप की जगह पे आपको इंटर्नशिप भी लगवा देते हैं. एटलीस्ट आपका इंटरव्यू प्रोसेस फैसिलिटेट करते हैं ताकि आपके पास इनकम स्टाइपेंड हो. और आई थिंक जर्मनी में आप फ्रैंकफर्ट में मॉर्गन स्टैनली या ब्लैक रॉक अपनी सीवी पे नहीं ला सकते, जो आप आराम से बुदापेस्ट में ला सकते हो. तो मेरे तो ख्याल से बहुत अच्छा डिसीजन था. और ये सीयू भरी हुई है लम्स आईबी के बच्चों से, पूरे बैचेस उसके आते हैं हर साल. या मुझे थोड़ा सा ऐड करना था टुवर्ड्स द प्रोफाइल पार्ट जो बात की ना, कि कैंडिडेट्स. मेरी ऐसे का एक और कैंपस सिंगापुर में था, वहाँ पे एकेडमिक डायरेक्टर से ही बात हुई थी कुछ दिनों पहले. और मैंने स्पेन में सारे में भी एडमिशन लिया था, उस वक्त नंबर 5 था, लेकिन फिर मैं पेरिस चला गया था. थोड़ा सा ना कैंडिडेट जो हम लोग हैं एज कैंडिडेट्स, हम एकेडमिक कमिटी अगर सोचें तो अगर जीपीए लो है तो डेफिनेटली वी हैव टू कॉम्पनसेट वाई GRE GMAT. आप फिर बोलोगे ठीक है मेरा मैथ्स में फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा स्कोर आएगा अगर मैं एनालिटिक्स कर रहा हूँ, इंग्लिश स्कोर इज ओके, ठीक है, मैथ्स को वो देखेंगे आपका. आप जो है कहीं ना कहीं जॉब एक्सपीरियंस से अपने आप को कॉम्पनसेट करो. अगर आपकी जीपीए थोड़ी लो है तो एक प्रोफाइल बना के आप जाओ, दैट इंक्रीजेस योर चांसेस. हैविंग सेड दैट, डू अप्लाई. लोग अप्लाई नहीं करते इनफ आई फील. जॉब्स पे भी है, मास्टर्स में भी, जैसे हम बता रही कि स्कॉलरशिप मिल गई, एवरीथिंग इज गुड. लोग या तो यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप, बस मैं ये बोलना चाहूंगा. एक चीज मैं बोलूंगा ऑन द अदर हैंड, कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, इट डज नॉट मैटर इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस, फनी स्टोरी, बट फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव आई एम श्योर इट्स द होल पैकेज व्हाट काउंट्स. इंटर्नशिप आपने कहाँ की हुई है, stuff like this as well, right? All right, I think we spoke a lot about this, and we have a very different question here right now, that can the spouse of a person enrolled in master's program come along and work? Who wants to answer this? Yeah, I could take over this, and then maybe Sama could add if she wants. So यहाँ पे जो family reunification visa होता है, if somebody is employed on a blue card या work permit, अगर वो spouse को पाकिस्तान से डायरेक्ट बुलाते हैं, तो अगर उनके पास ब्लू कार्ड नहीं है तो A1 की रिक्वायरमेंट होगी स्पाउस की, अदरवाइज विदाउट लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आ सकते हैं स्पाउस. एंड देन what about the master's program? हाँ, they have full working rights उस वक्त, तो they can enroll in a job without sponsorship. मास्टर्स में भी आपको जो है एडमिशन तो आप ले सकते हो. आई नो पीपल जो
जिनके स्पाउस पर यहाँ पे आके उन्होंने मास्टर्स परस्यू किया। बट माय क्वेश्चन इज कि अगर मैं मास्टर्स करने आ रहा हूँ और मेरा स्पाउस कैन आल्सो कम विद मी। मुझे ये पता है, मैं एक फ्रेंड, एक कपल को जानती हूँ, ठीक है। सो दिस गाय जितना टाइम वो मास्टर्स कर रहा था, इवन दो उसने ब्लॉक अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसे दिखाए थे, उसकी वाइफ का पूरा वर्क रिजेक्ट होता रहा डिस्पाइट हैविंग A1 कि वी नॉट कन्विंस्ड कि आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट कर पाएगा, लाइक आप आप बाद में आपके बच्चे भी हो जाएंगे एंड विद दिस अमाउंट या विदाउट हैविंग अ स्टेबल इनकम हम नहीं देंगे। एंड द मोमेंट ही गॉट अ जॉब, उसको मिल गया स्पाउस परमिट। तो मेरे ख्याल से आना मास्टर्स मुश्किल होगा। आई थिंक ये बहुत ज्यादा स्टेट पे भी डिपेंड करता है, हो सकता है कोई और स्टेट वाले दे देते हो और कुछ ना देते हो। और आई थिंक ये इस पे भी डिपेंड करते हैं, कराची से यूजुअली इजी होता है, लाहौर से यूजुअली लोगों को ज्यादा कंप्लेंट्स होती हैं, Is there any लेकिन thought? अगर आप Yeah, sorry, Sama. इनकम नहीं हो Sorry. तो आई थिंक वो करते हैं। नहीं, आई टोटली एग्री। आई थिंक आप अगर यहाँ पे आते हो एंड यू वांट टू ब्रिंग योर स्पाउस इन एंड दे वांट टू वर्क और स्टडी, दैट्स आल्सो ऑलवेज एन ऑप्शन। बस आई थिंक आपको जब उनको शुरू में लाना होता है, यू हैव टू शो लाइक स्पेस, लिविंग स्पेस एंड अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपेंसेस वगैरह। या अगर आप सेपरेटली अप्लाई करना चाहते हो मास्टर्स के लिए और आना चाहते हो, वो भी पॉसिबल है। लाइक यू डोंट हैव टू अप्लाई फॉर द रियूनियन वीजा एट ऑल। ऑल्सो इसमें मैं ऐड करूंगी कि मैंने ये तो बोल दिया, अच्छा ठीक है आपका स्पाउस आ जाएगा व्हेन यू आर स्टूडेंट, पर उसको वर्किंग राइट्स नहीं होंगे। आई ओनली हैड वर्किंग राइट्स क्योंकि शामिर के पास ब्लू कार्ड था। अगर शामिर के पास ब्लू कार्ड नहीं होता, मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए थी। तो टेक्निकली एक ही बात होगी, अगर आपके स्पाउस ने काम करने आना है, वो डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप लेकर आए या फिर वो आपके थ्रू आए, उसको स्पॉन्सरशिप फिर भी चाहिए होगी टू हैव टू वर्क। नाइस, थैंक्स। मेरे ओपिनियन में भी ना, मेरे भी कुछ दोस्त हैं who were married in Pakistan for example, but on a student visa they could not invite their spouses। बहुत मेहनत की उन्होंने, डबल ब्लॉक्ड अकाउंट भी जमा करवा लिया, 20,000 यूरो जमा करके दिखा दिए, एवरीथिंग, बट वीजा ऑफिस रिजेक्टेड। सो यस, आई थिंक इट्स बेटर कि अगर स्पाउस है सो दे शुड कम ऑन अ मास्टर्स इंस्टेड ऑफ, अगर आप स्टूडेंट हो, वरना वर्क परमिट के साथ तो कोई मसला नहीं होता, स्पेशली फ्रॉम कराची। एंड फर्स्ट आई विल आस्क शामिर to talk something about CVs, how to make the CV, how to not make the CV, and how to not make mistakes. Yeah, this is ठीक है, this is my favorite part. यार resume का ना बड़े problems मैंने देखे हैं, हर रोज कोई ना कोई रिव्यू के लिए भेज ही रहा होता है। और as I said के मैं भी एक इंटरव्यू राउंड में हूँ जब हमारे पास CV, कवर लेटर, पोर्टफोलियो हर चीज आती है। रेज्यूमे की कोई बेसिक मिस्टेक्स हैं, लोग नॉर्मली फ्रेश ग्रेजुएट भी यूरोपास फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, दैट्स फाइन, बट मेक श्योर कि 1 पेज से ज़्यादा ना जाए आपकी CV। अगर आपका 3-4 years of experience भी है, 5 years भी है, जिसका मेरा है, मल्टीपल कंट्रीज में है, प्रोजेक्ट्स की है, सोसाइटीज़ की भी हैं, प्रेसिडेंट भी हो, एवरीथिंग इज़ गुड, बट 1 पेज से ज़्यादा ना करो। अगर बहुत ही ज़्यादा कोई मजबूरी है 1 पेज से ज़्यादा करने की, तो ऐसी कोई चीज़ वहाँ लिखो सेकेंड पेज पे जो रिक्रूटर ना भी पढ़े, तो यू डोंट लूज आउट। तो ये मैं बोलूँगा। और अब ये नॉर्मली ये हो रहा है कि जो हार्वर्ड फॉर्मेट है, जो IB लम्स में भी फॉलो होता है, दैट्स गुड इनफ। मैंने हमेशा उस तरह रखा है, बहुत ज़्यादा सीरीज पिक होती हैं बर्लिन में, एवरीथिंग इज़ गुड। कुछ चीज़ें आप अभी ये भी पढ़ो कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में जो बड़ी कंपनीज है वो ये भी लिख रही हैं, डोंट पुट इन योर पिक्चर, अपना आप जेंडर मत लिखो, डेट ऑफ बर्थ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की डिटेल्स के बजाय अगर आप अपनी प्रोफाइल बना लो, फॉर एग्जांपल आई लिंक माय ओन वेबसाइट shamirkazi.com, मैं अपना गिटहब रिपोजिटरी उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स डाल के करता हूँ, अपना लिंक्डइन ज़रूर वहाँ पे लिखो, अपनी प्रोफाइल में हर चीज़ हाइपर लिंक करो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। इट शुड फॉलो वेरी क्लियर स्ट्रक्चर। आप प्रोफाइल से स्टार्ट करो एंड देन स्टार्ट ऑफ विद योर एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्पेशली योर टेक स्किल्स, ज़रूर उसको लिखो, जो भी आपकी फील्ड है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट है। और फिर देन एंड ऑफ विथ योर एक्स्ट्रा करिकुलर अगर ज़रूरत हो। लोग 4-5 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ लिखते हैं, डेडिकेटेड वर्किंग प्रोफेशनल एक्सेट्रा, दैट्स गुड, बट बुलेट पॉइंट फॉलो करो, वन लाइनर, एंड फॉलो द XYZ फॉर्मेट। जो एक बहुत अच्छी गूगल की वीडियो भी है ऑन यूट्यूब, तो हाउ टू बिल्ड योर रेज्यूमे, 5-6 मिनट्स की, हैव अ लुक एट इट। तो उसमें ये होता है कि आई अचीव्ड X यूजिंग Y मेथोडोलॉजी लीडिंग टू Z रिजल्ट। इस तरह अपनी चीज़ें आप करो और डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए रेज्यूमे। और ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अगर कोई और भी फॉलो अप इस पे क्वेश्चन है, anybody wants to add? So somebody asked actually very interesting question कि यूरोपास की CV तो मेरी 2 पेजेस पे जा रही है, मैं क्या करूं? यार ऑनेस्टली 2 पेज की CV मैंने जो नोट की है ना, अगर आपका 5-6 years एक्सपीरियंस आपका कम है तो वो बहुत ज़्यादा स्पार्स होती है, उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्पेस होगी, बहुत ज़्यादा आपने स्पेसिंग की होगी। चेंज द फॉर्मेट। मेरे पास बहुत सारी CVs आती हैं, कॉलम फॉर्मेट में आती हैं, और जो है मैं कुछ रिक्रूटर्स से गूगल वगैरह में बात कर रहा था, ये फॉर्मेट भी चलता है, कॉलम एक लेफ्ट पे आपके सारे स्किल्स होते हैं, राइट पे प्रोफाइल होती है,
आप हार्वर्ड फॉर्मेट फॉलो करो जो बेसिक्स है, जो लम्स आईबी में फॉलो होता है, दैट्स आल्सो गुड। मेरी अभी तक उसी बेसिक फॉर्मेट पे, इट डजंट मैटर। तो एक तो पॉइंट में, 2 पेज पे ना करो। यस प्लीज, एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि जर्मनी में ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है कि वो आपकी सीवी पढ़ने से पहले दे रन थ्रू अ सिस्टम, और अगर आपकी सीवी सिस्टम रीडेबल ही नहीं होगी ना, तो यू विल नॉट बी कॉल्ड इवन फॉर एन इंटरव्यू, चाहे आप स्टूडेंट जॉब पे या फुल जॉब पे हो। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट अपनी सीवी को किसी ऐसे सिस्टम से गुजार के देखो कि भाई इसमें कुछ पढ़ाई भी जा रहा है, अगर आईटी सिस्टम पढ़ता है, बिकॉज व्हाट दे डू इज दे लुक आउट फॉर कीवर्ड्स, स्किल सेट्स। अगर आपने टैबलो लिखा हुआ है, अगर आपने बीआई डैशबोर्डिंग लिखी हुई है, अगर आपने लिखी भी नहीं है और बेशक आपने लिखी हुई वो पढ़ी नहीं जा रही हो, exactly. So I worked at Zing, where Zing is like a LinkedIn company from Germany. And there I worked in the jobs department, where my task was to convert the online jobs into machine readable format. So I know this very well. और फिर ATS जिसको बोलते हैं, लोग इसको ऐसे करते हैं कि आपकी सीवी आप जो है एक टैबुलर फॉर्मेट में बनाओ, मेक ए टेबल एंड देन लाइंस आप उसमें वाइट कर दो, सो दैट जब वो उसको रन करे, जो पार्सर हो, जिन लोगों ने NLP या डेटा साइंस किया वो दे वुड रिलेट बेटर, तो वो कीवर्ड्स पिक कर सके। ये हमारे पास भी एक इस तरह ATS सॉफ्टवेयर है, तो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। इस तरह कर ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, यू कैन हैव अ लुक उस पे ना। एंड जस्ट वांटेड टू ऐड कि मेक श्योर कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, या तो आपके कवर लेटर या सीवी में वो कीवर्ड्स हों जो जॉब को ढूंढ रहे हैं, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल जब हम हायर कर रहे होते हैं हमारे पास सारी सीवीज नहीं आती हैं, हमें HR ऑलरेडी फिल्टर करके वो सीवीज भेजता है फॉर द पोजीशंस, और हम उसमें से देखते हैं, और वो फिल्टर कैसे करता है, वो देखता है कि आपके जो कीवर्ड्स या जो रिक्वायरमेंट्स दिए हैं वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं होंगे तो वो हमें वो सीवीज ही नहीं भेजेगा। सिद्रा, आप इस पे भी ऐड करें प्लीज, कवर लेटर के ऊपर। या सॉरी शामिर, आप पे आता हूं मैं एक सेकंड में। Yes, cover letter. I think कल हमारी इस बारे में बात हुई and we were a little bit divided because जहाँ तक मैंने सुना था and in my company cover letter was important, और हमने भी जब हायर किया तो लोगों को तो हमने भी cover letters देखे हैं। तो maybe it depends on company to company, जो maybe a little bit more German companies हैं या bigger companies हैं, वो शायद देखती हैं into cover letters। तो what I said was, या जो मेरा experience रहा है people से कि cover letters थोड़े आपके job specific हो और बहुत generic ना हो। या अगर आप जेनेरिक कोई ले भी रहे हैं तो मेक श्योर फॉर द जॉब जो रियली रियली इंटरेस्टेड इन, उसको आप थोड़ा ट्वीक कर दें कि इट फिट्स विद व्हाट यू आर अप्लाइंग टू, बिकॉज समटाइम्स फॉर एग्जांपल इन बिजनेस आपका स्किल सेट बहुत सारी चीजों के साथ फिट हो रहा होता है और आप बहुत सारी चीजों में इंटरेस्टेड भी होते हो। फॉर एग्जांपल आई कुड अप्लाई फॉर फाइनेंस जॉब एज वेल, बिकॉज मैंने CFA के 2 लेवल्स भी किए हैं, मेरे पास फाइनेंस का भी एक्सपीरियंस है, बट ऑन द अदर हैंड मैं दूसरी जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकती थी। तो ओके, यस शामिर। रेज्यूमे के लिए एक चीज़ ऐड करनी थी कि वी टॉकिंग अबाउट द कीवर्ड्स, तो जब भी किसी को अप्लाई करना हो एक सर्टेन टाइप ऑफ जॉब्स, फॉर एग्जांपल टॉकिंग अबाउट डेटा एनालिटिक्स फॉर एग्जांपल, हैव अ लुक एट द जॉब पोस्टिंग। उसमें कुछ होगा कि you're a good candidate if you have XYZ blah blah blah, but you're an excellent candidate or we'd love to meet you if you have the below as well। उसमें वो good to have requirements आती हैं, such as ETL processes आ जाएंगे, hypothesis testing, statistical modeling, A/B testing आ जाएगी। तो वो भी लोग ज़रूर अपने रेज्यूमे पे लिखें, और ऐसे लिखें कि रिक्रूटर्स की सबसे पहले आंख वहीं पर जाए। ये एक ज़रा ज़रूरी चीज़ होती है कि रेज्यूमे भी इस तरह जॉब पोस्टिंग देख के बनाई जाए। Any thoughts? अच्छा, मेरे फॉर मी मैंने नहीं कवर लेटर डालती थी, क्योंकि मेरे लिए आई हैड टू चूज, ठीक है, मैं एक दिन में या तो 40 पोजीशंस अप्लाई करूं विदाउट कवर लेटर, या मैं एक दिन में 15 अप्लाई करूं विद अ कस्टमाइज्ड कवर लेटर। और मुझे ऑनेस्टली फायदा हो रहा था 40 पोजीशंस अप्लाई करने से, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो उन्होंने मुझे वैसे भी टेस्ट ही देना है, और अगर मैं टेस्ट देके टॉप कैंडिडेट में आ जाती हूँ तो फिर तो मैं वैसे ही कवर लेटर वाली स्टेज से आगे निकल गई हूँ, क्योंकि अब तो वो मेरे इंटरव्यू लेंगे। तो मुझे तो बहुत, क्योंकि आप देखो हर महीने 1500 एप्लीकेशंस ओपन है डिलीवरी हीरो और ज़ेनाडो में, और मैं 4-5 कंट्रीज अप्लाई करी थी, रोज वो 10-15 पोजीशंस खोल रही मेरी पसंद की। अब मैं हर किसी के लिए या तो कवर लेटर बनाऊं, तो आई थिंक वो नहीं देख रहे थे ये सब कुछ। वो उनको इतने ज्यादा लोग चाहिए कि वो बस जो जल्दी से आ रहा है उसको आप Yes, इंटरव्यू कर लो। I would agree, especially टेक में तो वो कह रहा है भाई ठीक है यार। ट्रांसपोर्ट, टेली ट्रांसपोर्ट हो जाओ, नहीं क्या कहते हैं उसको, never mind. Language barrier in different departments, Shamir, how would you say, how would you talk about this? And again, I would reiterate this point कि Shamir and Sama has this experience of more of an international type of a company. Sadra को मैं sideline नहीं कर रहा, उनकी भी company international है, but it's more German, like BMW, Mercedes, like they are German, they are very international, but they are very German from the blood. So first I will ask Shamir to talk something about some companies के यार Zalando में क्या सीन है? Zalando is also European, I think Italy में भी है Zalando, but how would you say
लैंग्वेज का क्या सीन है इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स? इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अगर हम बात करेंगे, एनालिटिक्स, एआई, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट एज वेल, तो जो टेक्नोलॉजी या स्टेम रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनमें टेक कंपनीज में लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड दैट इज अक्रॉस ऑल कंट्रीज. हमारे फिनलैंड से लेके यूके हर जगह ऑफिसेज हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा. बट इफ यू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली सेल्स सेंट्रिक जॉब, अब मुझे अगर बिजनेस डेवलपमेंट का काम भी करना है इन द फ्रेंच या नॉर्डिक्स मार्केट, तो मुझे लैंग्वेज चाहिए, डेफिनेटली ये तो है. एंड ये ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाता है व्हेन यू गो टू दीज जर्मन टाइप कंपनीज, DHL, अलियांस जिसकी बात की. तो आई फील कीपिंग कंसाइज ये बहुत ज़्यादा जॉब टाइप पे भी डिपेंड करता है, ऑफ कोर्स ऑन द टाइप ऑफ कंपनी एज वेल. तो फर्स्ट इंडिकेशन होती है जॉब पोस्टिंग कौन सी लैंग्वेज में, और वैसे आपको अपने एलुमनाई और यू नो थ्रू द ग्रेपवाइन के किस तरह ओपन है आपके लिए. बट अगेन ये जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल McKinsey, Bain, कंसल्टिंग, जो PwC, ऑडिट कंपनीज, दे आर कंप्लीटली क्लोज्ड ऑफ विदाउट द लैंग्वेज. तो वहाँ पे कोई भी आपको डिपार्टमेंट्स मुश्किल मिले विदाउट द लैंग्वेज. दैट्स माय फीलिंग. All right. Sidra, any points from you? And then we can hop to Sama. No, I think I completely agree कि यहाँ पे कुछ जगहों पे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अलियांस वगैरह भी हैं. You can apply there, you can get some positions जो कि आपको मिलेगी, लेकिन if you want to grow in your role या if you want to do department hopping, आप थोड़ा वहाँ grow करना चाहते हो या jump करके change करना चाहते हो, तो आपके पास opportunities बहुत limit हो जाती हैं, because उन companies में अगर एक department होगा भी जो कि English friendly है, तो बाकी नहीं होंगे. तो I think like Shamir said, कुछ companies होंगी जहाँ पे there is no problem, but there are bigger giants, Big Four, Allianz, या इस तरह की और companies जहाँ it's more difficult and they're more closed off. And Sama, will you also talk about, since you work at an American-based company, how does it matter कि अगर आपकी जर्मनी में जो टीम है, फॉर एग्जांपल, या किसी और कंट्री में, वहाँ पे लैंग्वेज का क्या सीन है? यार इट्स एन अमेरिकन कंपनी, उनकी वर्किंग लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है, तो उधर इतना फर्क नहीं पड़ता. बट आई थिंक आपका क्वेश्चन ज्यादा, तो मैंने जो जर्मनी में अप्लाई किया था, तो उसमें एक पोजीशन मेरे पास एक ऑफर आई थी विच वाज प्रोजेक्ट मैनेजर फाइनेंस. मुझे इतना फाइनेंस का एक्सपीरियंस नहीं था, और उस जॉब पोस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स में लिखा हुआ था जर्मन. और जब मैंने अप्लाई किया था, टर्न्स आउट कि मैं ओनली कैंडिडेट थी विद PMP, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया था. दैट वाज अ जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर पोजीशन. फिर जब मैंने इंटरव्यू किया उनके साथ, मैंने बोला मुझे जर्मन नहीं आती, मैं सीख लूंगी. उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, इट्स नॉट एन इशू, क्योंकि हम लोग खुद भी अपने एम्प्लॉयज को सिखाते हैं, सो वी कैन लुक इनटू दैट, और पूरी टीम को इंग्लिश आती है, सो होपफुली इशू नहीं होगा. और फिर मैंने कहा अच्छा मुझे जूनियर रोल नहीं चाहिए, मुझे सीनियर चाहिए, क्योंकि मेरे पास PMP है. उसने कहा ठीक है हम ये भी कर देते हैं. तो जैसे जेनाडो पे मुझे नहीं इशू हुआ. और जेनाडो पे मेरा एक और पोजीशन थी जो कि समथिंग ब्रांड करके थी, वो काफी मजे की थी. उसमें पूरी टीम को इंग्लिश आती थी, और उसने भी मुझे इंटरव्यू में बोला कि नहीं आपके डैशबोर्डिंग स्किल्स इतने अच्छे हैं, वी रियली वांट दैट इन द टीम, वो और लोगों को आते नहीं है. तो इट्स ओके, पूरी टीम को जर्मन आती है, तो वो वाली चीजें हम लोग देख लेंगे, इतना इशू नहीं होगा. और तो लेकिन ये वही वाली बात है ना कि मैं सिर्फ उन्हीं कंपनीज में अप्लाई की थी जहाँ मुझे पता था कि मेरे पास मुझे जर्मन का इशू नहीं होगा. बाकी में मैंने फिर अप्लाई नहीं किया. और विद माय करंट टीम मैं प्रोडक्ट रोल में हूँ, तो हम लोग के डिसीजन इस तरह के होते हैं, अच्छा हमारा इतने एक्टिव यूजर्स गिर गए हैं, इससे क्या मतलब है, हमें क्या करना चाहिए. देर मोर बिजनेस ड्रिवन. तो वो हेडक्वार्टर US में है, तो मैं तो उन्हीं को ही बता रही हूँ ना, आपको ऐसे कर लिया, ऐसे नहीं करना चाहिए. तो मुझे फर्क नहीं पड़ता जर्मनी में सेल्स वाले क्या कर रहे हैं. आई नो सेल्स वालों को जर्मन आती है, क्योंकि वो जाके हमारे क्लाइंट्स जैसे फाइजर है वगैरह वगैरह, वो लोग तो जर्मनी बोलते हैं. तो सेल्स में तो हमेशा आपको जर्मन चाहिए होगी, पर मेरा उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं है. All right, Shami, talk about, since you came from Pakistan directly on job, how would you cater to this question कि पाकिस्तान में अगर मैं ग्रेजुएट किया हुआ है, मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, what are the options that I can come to Germany and come to work here? What do you think about this? यार इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि जॉब प्रोसेस इटसेल्फ ना काफ़ी एक मुश्किल प्रोसेस है. तो पाकिस्तान से फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, यस, स्पेशली आई वुड से कि हमने तो बात की लैंग्वेज की, हमने बात कर ली, राइट, सेल्स एक्सेट्रा. बट उन जॉब्स के लिए जिनमें लैंग्वेज का इशू नहीं है, लोग डायरेक्ट पाकिस्तान से आ रहे हैं. मैं लोगों को जानता हूँ जो डायरेक्ट प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर हैं, जो डायरेक्ट एज एनालिस्ट इंडिया पाकिस्तान से, इटली, स्पेन से उठ के आए हैं. तो डेफिनेटली आपकी CV पिक होगी अगर आप पाकिस्तान में एक रेलेवेंट एक्सपीरियंस से आ रहे हो.
बट ये रेलिवेंट वर्ड इस वक्त पे ज़्यादा ज़रूरी है। आप वही चीज़ पाकिस्तान में कर रहे हो जो कि यहाँ पे काम हो रहा है, देयर आर कंपनीज जो इस तरह है, बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, दुनिया से लोग अप्लाई कर रहे हैं। हम लोग, मुझे याद है एक टाइम था जब हम लोग लंदन से काफ़ी ज़्यादा हायरिंग कर रहे थे, एक टाइम था कहीं और से ज़्यादा कर रहे थे। तो आप ये बस जहन में सब लोग रखें कि कंपटीशन है एंड यू हैव टू अप्लाई अ लॉट। तो कुछ रिजेक्शंस आए तो डोंट गेट डिटर्ड, रिजेक्शंस आती है, बट पाकिस्तान से डायरेक्ट होता है एंड देन मास्टर्स इज वन रूट। लेकिन अगर इफ यू हैव सब्सटेंशियल एक्सपीरियंस 2 3 4 years, डायरेक्ट भी होता है। So मेरा एक पर्सनल स्टैटिस्टिक है कि अगर आप देयर इज 10% सक्सेस रेशियो, दिस इज व्हाट माय पर्सनल ओपिनियन इज, कि अगर आप 100 जगह अप्लाई करोगे ना, 10 जगह से आपको रिस्पांस आएगा। दिस इज व्हाट माय स्टैट्स आर। सिद्रा, व्हाट डू यू थिंक कि अगर डायरेक्ट जॉब से पाकिस्तान से लेके आना है तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? Yeah, definitely. I think that is a possibility. I mean, Shahmir and is an example of that. But I think जब हम वो बात करते हैं ना, तो एक तो relevant experience के plus, for example, अगर Shahmir या Sama को यहाँ पे job मिली है without having studied here, they do have degrees from other European universities. Yes. They have very strong experiences. For example, Sama with her PMP certification, they have a very good package that they are bringing. So of course, having a university degree from somewhere here helps. अगर वो नहीं है तो हैव अ स्ट्रॉन्ग पैकेज और वेरी स्ट्रॉन्ग स्किल सेट दैट यू आर ब्रिंगिंग, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि लाइक आई सेड कि यहाँ पे अगर वो लोग एक जॉब खोल रहे हैं तो उनके पास यहाँ के भी तो ऑप्शन है, जो लोग यहाँ पे अवेलेबल है हु आर अप्लाइंग, या फिर अगर इतना ही उन्होंने ओपन किया है, दे आर ओपन टू ब्रिंगिंग पीपल, देन तो दुनिया का हर कोई बंदा अप्लाई कर रहा होगा। Yes. तो आपके लिए टफ बड़ा हो जाता है। फिर लाइक शाहमीर सेड कि देन अप्लाई अ लॉट एंड डोंट बी डिस्करेज्ड बाय द नॉन एक्सेप्टेंसेस, क्योंकि मैंने जो ज्यादातर यहाँ पे देखे हैं ना लोग, वो आई मीन होंगे, ऐसे भी होंगे जो डायरेक्ट आए होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग वो मास्टर वाला रूट लेते हैं। बिकॉज कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल हम लोग भी जब हायर करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे कोई पढ़ा हुआ है या जो ऑलरेडी यहाँ पे है। बिकॉज अगर हमने किसी को ऑन बोर्ड करना है नेक्स्ट 2 months, सो इट्स इजियर टू ऑन बोर्ड समवन जो कि यहाँ पे है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो कि यहाँ नहीं है, क्योंकि उसके वीजा प्रोसेसेस और ये सब बहुत फिर लंबा हो जाता है। तो हम क्यों उस हैसल में पड़े, वी रादर देन हायर, अगर हमें स्किल सेट का बंदा वो यहाँ भी मिल रहा है वहां भी मिल रहा है, फिर हम यहाँ से उठा लेंगे। I For see, me, understood. मेरा कोई भी इंटरव्यू प्रोसेस सिवाय मेरी करंट कंपनी के ऐसा नहीं था जो मुझे स्पॉन्सर करने को तैयार नहीं था। एक्चुअली वो सब लोग अज्यूम कर रहे थे उन्हें मुझे स्पॉन्सर करना होगा। मैं उनसे कही थी कि नहीं, मेरे हस्बैंड के पास ब्लू कार्ड है तो नहीं करना होगा। तो वो था, उनको ये एडवांटेज जरूर था कि ओ अच्छा, सो मे बी यू कैन जॉइन अस इवन सूनर, बिकॉज उनके माइंड में फिर टाइमलाइन आ रही थी कि अच्छा चलो 4-5 महीने लग सकते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी मेरी एप्लीकेशन इस चीज की वजह से अफेक्ट नहीं हो रही थी कि मैं जर्मनी में हूँ कि नहीं। लेकिन मैं बहुत अप्लाई करती थी, मैं जितना अप्लाई किए लोग उतना नहीं करती। मैं एक्चुअली 60 पर डे करती थी, मैं वाकई में बहुत ज्यादा करती थी। लोग It's a 1-2 के full-time बाद job to हमारा apply तो for a हो full-time नहीं। job. Yeah, I think you also applied a lot, right? I think मैंने total इतने apply किए होंगे जितने आपने एक दिन में किए। So I think that's also that, then that's a good point कि then you have to apply like crazy, then you have to make sure कि आप apply कर रहे हो, but आपके जैसा skill set भी और प्रोफाइल भी होनी चाहिए ना फिर। Also like even for the package, वही वाली बात again, वो मुझसे पहले टेस्ट करा रहे हैं। तो अगर मेरे पास मास्टर्स करके भी मुझसे वो टेस्ट नहीं हो रहा, मास्टर्स के बगैर मुझसे वो टेस्ट हो रहा है, मैं नेक्स्ट राउंड में चली जाऊंगी। वो मुझे टेस्ट के स्कोर पे देख रहे हैं, वो मुझे मेरे मास्टर्स की वजह से नहीं आगे लेके जा रहे। तो टेक में तो एटलीस्ट टेस्ट होता है और टेस्ट से ही आगे जाते हो आप। All right, Sama. So thanks a lot. And next question is about the types of jobs which we have in Germany. अगर आप business graduate हो तो किस तरह की jobs यहाँ पे होती हैं? And first point is again for Sama because she works in analytics, so she can talk about this, and then we can talk about other way. तो मैं जब अप्लाई करी थी, मैं ज्यादा करी थी जैसे बिजनेस एनालिटिक्स करी थी, मैं प्रोडक्ट एनालिटिक्स करी थी। फिर थ्रू रीडिंग जॉब डिस्क्रिप्शंस मुझे ज्यादा अच्छा लगने लग गया प्रोडक्ट एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स तो डिफरेंट था। तो वो ऑफ कोर्स थी, लेकिन एनालिटिक्स में आपको एटलीस्ट एसक्यूएल तो बहुत अच्छी आनी चाहिए। ये तो मतलब आपको आनी ही चाहिए, आपका टेस्ट भी होगा और वो अज्यूम भी करते हैं कि आपको आती है। फिर जो दूसरे में अप्लाई करी थी वो थी बिजनेस एनालिटिक्स, उसमें बिजनेस इंटेलिजेंस, इसमें डैशबोर्डिंग या रिपोर्टिंग टाइप की चीजें आ रही थी। फिर ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में लैंग्वेज बैरियर था, कुछ कंपनीज थी जर्मनी पे, पर जनरली था। प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए आपको ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, मैं क्वालिफाई नहीं करी थी। स्ट्रैटेजी रोल्स मैंने काफी इंटरेस्टिंग अप्लाई किए थे, जैसे वो हमारा नई मार्केट में हम एक्सपैंड करना चाह रहे हो, हमें इसकी स्ट्रैटेजी बनानी है, या फिर हम नई मार्केट में एक्सपैंड कर रहे हैं, हमें ऑपरेशंस देखने हैं। जैसे करीम टाइप की कंपनीज जो होती हैं वो कहती हैं अच्छा हमें अपनी फ्लीट बढ़ानी है, तो हम किस टाइम पे कितने लोग किस जगह पे एलोकेट करें। तो इस तरह की चीजें थी, काफी मजे की। फाइनेंस मैंने अप्लाई नहीं किया था,
लेकिन आई थिंक शामी को ज़्यादा Shami, पता होगा। Shami can talk about project management, and maybe he also gave me a meta example कि meta में क्या काम हो रहा है. Maybe you can talk about this. हाँ यार, हमारी जो कल बात हुई थी इसमें मेटा के हवाले से, वो ये था कि टाइप ऑफ जॉब्स स्पेशली काफ़ी बिजनेस एनालिसिस और एनालिटिक्स के मैं क्वेश्चंस भी देख रहा हूँ. जस्ट वांट टू पुट इट आउट देयर बिकॉज मेरी भी जो स्टडी थी, इट वाज एक दो स्कूल्स थे, एक मास्टर इन डेटा साइंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स. तो कभी कभी एंड आई स्पोक अबाउट दिस अर्लियर एज वेल कि ये फील्ड जो है इस वक्त थोड़ी सी कंप्लीटली मैच्योर नहीं है, जस्ट लाइक फाइनेंस फॉर एग्जांपल. तो कहीं पर अगर कोई डेटा एनालिस्ट होगा, वो कुछ कंपनीज के हिसाब से प्रोडक्ट इंसाइट्स इंजीनियर एनालिस्ट, जो मेरा फॉर एग्जांपल इस वक्त काम है एज अ प्रोडक्ट सीनियर एनालिस्ट, तो वो मेटा में उसको डेटा साइंटिस्ट बोलते हैं, और डेटा और जो वरना किसी और जॉब को एमएल इंजीनियर बोलेंगे. तो ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करना ज़रूरी होता है कि आप जॉब पोस्टिंग देखो किस टाइप के स्किल्स वो लोग मांग रहे हैं. सो मैंने कुछ स्किल्स की बातें की थी कि जो एनालिटिक्स की जॉब है, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, उसमें आपको एसक्यूएल सबसे ज़्यादा चाहिए. विजुअलाइजेशन इज आल्सो गुड टू हैव, पाइथन इज आल्सो गुड टू हैव. ये तीन इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे. बाकी अगर आपको प्रोडक्ट की टाइप ऑफ जॉब्स देखनी है, वहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे ऑफ द होल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फ्रॉम आइडिएशन डिस्कवरी टू एग्जीक्यूशन. आपका एक्सपीरियंस चेक करेंगे वर्किंग विद इंजीनियरिंग टीम्स एक्सेट्रा, और कुछ उसमें टेक्निकल टूल्स आते हैं जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट लोग यूज करते हैं. Sidra, can you quickly talk about some? है फाइनेंस में आई थिंक एक चैट में भी क्वेश्चन था, फाइनेंस ग्रेजुएट्स के लिए जॉब्स होती हैं. आई थिंक यू आल्सो हैव टू बी क्लियर ऑन, जब आप फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हो, आप किस किस्म के फाइनेंस रोल में जाना चाह रहे हो. डू यू वांट टू गो इनटू अ रोल कंपनी में जिसमें आप फाइनेंस डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हो, आप कॉस्टिंग बजटिंग कर रहे हो, आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आप एक फाइनेंस बिजनेस पार्टनर के रोल में हो, या फिर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ जाना चाह रहे हो, कंसल्टिंग की तरफ जाना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो. Depending on that, it will be somewhat lesser or more difficult to get a job. I think when you talk about companies, so जो normal companies हैं उनके अंदर जो finance managers के role होते हैं ऐसे, वो that should be comparatively easier to get without the language. बट जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इंश्योरेंस की हैं, इन्वेस्टमेंट की हैं, वहाँ पे इट्स अ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट है, क्योंकि अगेन वही बात आ जाती है, आपके बहुत सारे काम जर्मन में हो रहे होते हैं. तो वहाँ पे शायद थोड़ा आपको ब्रेक करना और अंदर जाना would be a little bit more difficult with finance. All right, thanks. So next point is about salary ranges. Maybe you can talk something about this कि salaries क्या मिलती हैं, अमीर कैसे होते हैं यहाँ पे. सिद्रा? It's towards me. अमीर कैसे होते हैं यार, टैक्सेस में चला जाता है बस सब तो खैर. But generally salary ranges, it's not like you can say कि अगर आप यहाँ स्टार्ट कर रहे हो तो आपको यही से ये सैलरी ही मिलेगी. There are some ranges जिसके बीच में यूजली आपको मिल सकती है. तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो 40 से 55 के यूजली मिल जाता है आपको फॉर स्टार्टिंग पोजीशन. Like there are written bands here के इसमें होते हैं but that depends a lot about कि आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो. Is it a big company? Is it a small company? What kind of a role is it? Blah blah blah. तो और cities पे भी कभी कभी डिपेंड करता है. For example, म्यूनिक के usually slightly higher होते हैं salaries because वहाँ के expenses ही इतने ज़्यादा हैं कि you have to compensate a little bit for that. लेकिन it depends. So you will have to see कि आप कहाँ apply कर रहे हो. Even मतलब आपको कभी कभी छोटी कंपनीज थोड़ा कम भी ऑफर कर देती हैं. कुछ एसएपी टाइप कंपनीज होती हैं, उनके बैंड्स होते हैं तो वो उसके विद इन ही ऑफर कर सकती हैं. कुछ कंपनीज आई नो आर मोर ओपन टू नेगोशिएशन, तो आप इवन उनको थोड़े 60-70 इवन अबव लेके जा सकते हो और वहां नेगोशिएट कर सकते हो. तो यू विल हैव टू सी कि आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप कौन सी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप कौन से शहर में अप्लाई कर रहे हो, प्लस दूसरा बेनिफिट्स क्या क्या हैं, वो भी एक पॉइंट होता है. So शामिर पे आ जाते हैं because शामिर also does a lot of hiring in Germany. So please talk about these points. सैलरी का थोड़ा सा ट्रिकी है. अगेन बेस्ड ऑन द सिटी ज़्यादा फर्क पड़ता है. अगेन म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट की ज़्यादा सैलरी बैंड्स हैं कंपेयर टू अदर्स. कुछ कंपनीज डिफरेंशिएट नहीं करती. रिमोट जॉब्स में इतना ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं होता बिकॉज देन इट्स अप टू यू कहाँ पे रह रहे हो. आई वुड एग्री कि स्टार्टिंग रेंज इज अराउंड अर्ली 40s, और फॉर जूनियर रोल्स, जिन रोल्स में जूनियर लिखा होगा 10,000 तक की रेंज होती है. एंड देन मिडिल रोल्स जिसमें 1-2-3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, दे स्टार्ट एट अबाउट early 50s going on to the early mid 60s as well. Senior roles के लिए फिर the range is higher, 65 plus I would say, और फिर उसकी लिमिट ज़्यादा होती नहीं. that really depends कि आपका years of experience कितना है. And what do you talk about the benefits
अगर सिर्फ salary is not everything, you have other Yeah. things as well. Mhm. For So, example, one thing which Sidra mentioned is about work-life balance. Amazing. हाँ ये भी है. एंड टॉकिंग अबाउट द मोर, ये एक स्ट्रैटेजी लोग फॉलो करते हैं कि दे चूज अ सेट ऑफ कंपनीज, 10-15 कंपनीज, वहीं पर बस ब्रूट फोर्स टैक्टिक्स यूज कर रहे होते हैं. इट्स प्रीटी यूजफुल. अगर आपको पता चल गया कि ये मेरी इंग्लिश, मेरी जर्मन लैंग्वेज इतनी एडवांस नहीं है और मैं एक सर्टेन टाइप ऑफ कंपनी चाह रहा हूँ, सो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि कंपनीज की आप लिस्ट बनाओ, मे बी 20-25 कंपनीज, उन्हीं पे लिंक्डइन अपने अलर्ट्स लगाओ और जो भी पोस्टिंग आए वहीं पर अप्लाई करो. दैट रियली हेल्प्स, बिकॉज यहाँ पे ना नेटवर्किंग का काफ़ी ज़्यादा सिस्टम चलता है. इफ़ रिक्रूटर्स नो यू, आपने एक HR रिक्रूटर से 1-2 इंटरव्यूज क्लियर किए हों एंड आफ्टर सम टाइम एक और जॉब भी आती है, तो इट वुड रियली हेल्प. हैविंग सेड दैट, जो नेम्स हैं कंपनी के विच कम टॉप ऑफ माइंड, एक तो मेरी कंपनी ज़लांडो, देयर इज डिलीवरी हीरो, हेलो फ्रेश, देयर इज वेफेयर, और काफ़ी मिडिल साइज्ड कंपनीज भी हैं बर्लिन में जो बिल्कुल इंग्लिश फ्रेंडली होती हैं एंड दे डोंट हैव प्रॉब्लम. बाकी ऑफ कोर्स फॉर इंश्योरेंस देयर आर इंश्योरेंस जाइंट्स, Allianz, etc. McKinsey, Bain, BCG, PwC, everything is here as well. And of course the German companies, so BMW, SAP, Daimler. So look out for these companies depending on the job type. But it's always good to restrict yourself to maybe 20-30 companies even. कहाँ ढूंढे जॉब शामिर? यार मेरा जो है, मैंने हमेशा लिंक्डइन यूज़ किया है और काफ़ी ज़्यादा पोस्टिंग आती है लिंक्डइन पे, इतनी ज़्यादा कि आप सारी अप्लाई नहीं कर सकते. बट अगेन हैविंग सेड दैट, इंडीड, जिंक पे काफ़ी लोकलाइज जॉब्स भी आती हैं. ये मेरा यूरोपियन एक्सपीरियंस रहा है कि डेफिनेटली आपको अवेलेबल होना पड़ता है ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, नॉट जस्ट लिंक्डइन. दैट्स ऑलवेज रिकमेंडेड. जी समा. यार मैंने ज्यादा लिंक्डइन से अप्लाई किया था. मैंने हर जगह प्रोफाइल बनाई थी. टर्न्स आउट टू सेम पोस्टिंग्स थी हर जगह. इस स्पेशली फॉर डिलीवरी हीरो. ठीक है, वो लोग हर रोज पोस्टिंग्स डालते हैं और उनके अलर्ट्स बहुत अच्छे थे. तो डिलीवरी हीरो के मैंने वेबसाइट पे अलर्ट्स डाले हुए थे बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट्स आई वाज इंटरेस्टेड इन. और एक चीज जो मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क की थी वो ये था कि बेशक कोई भी टाइम हो, लेकिन रात के 2-3 ही क्यों ना बज रहा हो, जैसे मुझे अपडेट आता था मैं उसी वक्त अप्लाई करती थी. ये एप्लीकेशन बहुत छोटी हैं, ये 3 क्लिक एप्लीकेशन है. ठीक है, आपने सिर्फ 1-2 चेक बॉक्स डालने हैं और आपने सीवी अपलोड करनी है एंड सबमिट. ठीक है, 1 मिनट लगता है. लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती थी कि मैं फर्स्ट पूल ऑफ एप्लीकेंट्स में हूँ ताकि उससे पहले कि ढेर लग जाए उनके पास सीवीज का, मैं हमेशा शुरू में हूँ. तो लिंक्डइन से भी यही फायदा होता था. मैंने डेली अलर्ट्स लगाए हुए थे फॉर लास्ट 1 डे और मैं हर दिन अप्लाई करती थी उसी दिन की पोस्टिंग पे ताकि मैं हमेशा शुरू के एप्लीकेंट्स में. और इससे मुझे बहुत फायदा हुआ था क्योंकि एक दफा मुझे याद है मेरे इंटरव्यू ने मुझे कहा था, ओ वी रिसीव 3000 एप्लीकेशंस and I shortlisted 300 and you're amongst the people जो मैं आगे करूंगी which are 5 people from those 3000 people. उसमें मैंने एक तो शामी का रेफरल भी यूज किया था और दूसरा मैंने उसी वक्त अप्लाई किया था जैसे पोस्टर थी. इंटरेस्टिंग. सिद्रा, आप कुछ बोलेंगे इसके ऊपर, वेयर टू लुक आउट फॉर जॉब्स? Yeah, I think of course LinkedIn is the major place where you can look, but मेरे personal experience में सारी jobs LinkedIn पे नहीं आती हैं. There are some that you will find on Indeed or Zing. और अगर because usually I don't apply for everything. मैं अपने pre screening भी कर लेती हूँ कि मैं इस job में apply कर लूँ, शायद मेरा हो जाए पर शायद मैं जाऊँ नहीं, तो मैं उधर फिर अप्लाई नहीं करती. देन आई अप्लाई टू अ फ्यू, तो फिर मैं सारे प्लेटफॉर्म्स पे चेक करती हूँ अच्छा कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है, ये जो टैग्स मैंने लगाए हुए हैं. बिकॉज आई back then, at least when I was applying actively 2 years back, not every job was in on LinkedIn. I did find some unique ones जो या तो Indeed या Zing या ऐसे मिल जाती थी. तो पॉसिबिलिटी है अगर आप लिंक्डइन पे ही सिर्फ अपना सारा फोकस करना चाहते हो एंड यू आर अप्लाइंग एक्सटेंसिवली थ्रू दैट, तो उस पे भी मिल जाए. बट इफ यू वांट टू लुक अ लिटिल वाइडर और हर कंपनी में या इंटरेस्टिंग जॉब देखना चाह रहे हो उस हिसाब से, तो डू आई वुड से कीप इट ओपन, मेक अ प्रोफाइल. सिद्रा, आप रेफरेंस के बारे में क्या कहेंगी? हाउ डज इट वर्क इन जर्मनी? इज इट यूजफुल? Yes, it is very useful because people rely a lot on reference, but I think whenever you have a reference, it should be a good reference. Because अगर मैं किसी को भी मुंह उठा के रेफर कर दूं
तो उसका अगर बाद में मैनेजर मुझसे पूछने आता है हाँ तो यू रेकमेंडेड दिस पर्सन और यू रेफर्ड दिस पर्सन एंड तो क्या इसके बारे में मुझे बता सकती हो, तो अगर मैं कुछ बता नहीं सकती तो उसका फायदा नहीं है. तो आई थिंक एटलीस्ट इफ यू रेफरिंग समवन, इफ यू डोंट नो इवन नो देम पर्सनली, तो उसकी कुछ आपको स्किल सेट पता हो या कुछ पता हो, एंड यू आई थिंक इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन यू एज वेल, बिकॉज अगर बंदा अच्छा होगा तो इट समटाइम्स इवन इट पेज monetarily, because for example at SAP if you refer someone and they get hired you get paid Yes, for that. even at even I at think my a lot of companies, right? yes, they So pay you there's a 2,000 monetary. euros to Yeah, me. so there's a monetary. किसी को रेफर होना तो बता दे. There's a monetary benefit to that, but I think yeah, always go for referrals. आप अपने आप को refer कराओ, but I think अगर the strongest reference you can also create is while working at a company. So for example, if you are taking the study route, आप मास्टर्स कर रहे हो और उसके बीच में यू आर वर्किंग एज अ वर्किंग स्टूडेंट और इंटर्न, तो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और रेफरेंसेस बन जाते हैं. एंड वंस दीज जर्मन पीपल, एटलीस्ट फॉर जर्मन कंपनीज, दे नो यू personally, not in a personal capacity, but in a business capacity, they feel more comfortable in hiring you than hiring somebody जिसके हो सकता है आपसे skill set थोड़ा better भी हो, but since they know you personally, since they've been working for you with you, तो और आपको company and process भी पता है, वो आपको hire कर लेंगे. All right, Shami, please talk about 2 points. One is the referral and second is soft skills and relationship building. How does it help? Well, again, just adding on and keeping it short, BK, referrals definitely help if you're going for a cold call on LinkedIn कि आप जो है किसी को मैसेज कर रहे हो कि यार इस कंपनी में मुझे रेफरल चाहिए, तो don't just write कि would you be able to refer me. आप अपना थोड़ा इंट्रो दो, treat it as a first interview ताकि वो भी आपको थोड़ा सा वाइट लिस्ट करके आगे रेफरल करे, बिकॉज वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होता है एंड पीपल कैन कम बैक एंड आस्क. उसके अलावा जो है ऑफ कोर्स नेटवर्किंग, अगेन it really helps over here. And अगर आप डायरेक्ट जॉब मार्केट में आ रहे हो फ्रॉम पाकिस्तान, if you're going to that route, it will be an uphill task as well. But if you're in Germany, तो वर्क स्टूडेंट से जो है बेस्ट तरीका है आने का. और मार्केटिंग प्रोफेशन का क्या सीन है ज़ोलांडो में? अगर मैं पाकिस्तान से, मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे ज़ोलांडो में काम करना है, which is more of a international type of a company. Will you guys hire a person who's coming from Pakistan with a marketing background? अच्छा, नॉर्मली मार्केटिंग ना बहुत मार्केट स्पेसिफिक जॉब्स खुलेंगी. फॉर एग्जांपल पोलैंड की खुल जाएंगी, फ्रांस की, इटली की. तो काफ़ी रोल्स हैं जिनमें लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है फॉर श्योर. बट इफ इट्स मोर टुवर्ड्स मार्केटिंग एनालिटिक्स, फॉर एग्जांपल देयर इज अ होल कंपनी ज़ोलांडो मार्केटिंग सर्विस ZMS करके, तो वहाँ पे एनालिटिक्स की जॉब और डेटा रेलेवेंट जॉब्स खुली हुई हैं. एंड दैट्स मार्केटिंग एनालिटिक्स. वहाँ पे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है. So continuing on this, yes, please also talk about, yesterday we discussed कि यहाँ पे people should also be very open for internships. इंटर्नशिप्स का ऐसा है कि थोड़ा सा डिफरेंट है पाकिस्तान से कल्चर. पाकिस्तान में हमें जब हमारी समर वेकेशंस होती हैं इन सेकंड लास्ट सेमेस्टर, हम लोग जो है 6 वीक्स की एक इंटर्नशिप करते हैं. और आई रिकॉल के उस टाइम पे PNG की 3 मंथ्स की होती है, सब लोग बोलते हो 3 मंथ्स लॉन्ग इंटर्नशिप. यहाँ पे सिस्टम इज डिफरेंट. यहाँ पे जो है 6 मंथ्स की भी होती है इंटर्नशिप. एंड अगर आपने MBA भी किया हुआ है, आफ्टर MBA यू हैव टू डू एन इंटर्नशिप. यहाँ पे कल्चर है, तो इंटर्नशिप लीडिंग टू जॉब होता है. तो बी ओपन टू इट. इट्स अ वेरी गुड थिंग. इंटर्नशिप इज अ वेरी गुड वे टू गेट योर फुट इन द डोर. प्लस अगर आप डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हो, ह्यूमैनिटीज से, सोशल साइंसेस से, इंटर्नशिप से के थ्रू ही आप ट्रांजिशन करते हो टुवर्ड्स योर ड्रीम जॉब, इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू कॉल इट. तो इंटर्नशिप्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेल रिकॉग्नाइज होती हैं और काम भी काफ़ी अच्छा होता है. Thanks. Last couple of questions is about startup ecosystem in Germany. ये भी शामिल मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, since you are. हाँ, स्टार्टअप्स का ऐसा है कि इफ़ यू वांट टू वर्क इन स्टार्टअप्स, तो देयर आर स्टार्टअप्स जिनकी सीड राउंड भी हुए होंगे एंड दे विल बी विलिंग टू स्पॉन्सर यू. बट अगर आपको अपना स्टार्टअप खोलना है, तो पाकिस्तान में ऑब्वियसली एक होम ग्राउंड वाला एडवांटेज होता है. यू नो द लैंग्वेज, यू नो द रेगुलेशंस एक्सेट्रा. यहाँ पे अगर आप आके बोलते हो कि मैं फ्रॉम स्क्रैच में स्टार्टअप करूंगा विदाउट एनी जर्मन एक्सपीरियंस, विदाउट नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, बहुत मुश्किल है. तो फंडिंग अगर थोड़ी सी मिल भी जाती है, उसको ग्रो करना, अगेन आई डिस्कस यस्टरडे, बहुत प्रॉब्लम होता है. तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप आओ यहाँ पे, थोड़ा सा काम करो, स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखो, and then start off something of your own. Directly आके कुछ startup करना चाहोगे, it's difficult, I would say. All right. Sama, maybe you can also talk about some common interview mistakes. Oh, ये तो मैं ढेर लगा दूंगी. कॉमन इंटरव्यू मिस्टेक्स में जैसे मुझे याद है कि एक मेरे सारे स्टेजेस क्लियर हो गए थे डिलीवरी हीरो के, और
उन्होंने कहा था कि एंड पे दिस बंदी जो डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है एंड शी जस्ट लाइक्स टू पर्सनली से हाई टू एवरी न्यू रिक्रूट, ठीक है। और उससे मैंने जब बात स्टार्ट की तो यूजुअली मैंने इंटरव्यू पैकेज ऐसे डाली की थी, जब भी मैं कोई चीज बताऊँ ना, लाइक कोई स्ट्रेंथ बताऊँ अपने बारे में फॉर एग्जाम्पल, तो मैं हमेशा एक एग्जाम्पल दूँ क्योंकि वो आपको कट ऑफ कर देते हैं, आप बता नहीं पाते हो। तो उसने मुझसे ऐसे पूछा, इस बंदी ने आते ही, ये 15 मिनट की कॉल थी, कि टेल मी इन 3 वर्ड्स हाउ यू वुड दिस व्हाटएवर, ठीक है। और मैं ऐसे स्टार्ट की कि ओ व्हेन आई वाज हियर, क्योंकि मैं एग्जांपल दे के पॉइंट पे आना चाह रही थी। और मैंने जैसे बोला व्हेन आई वाज हियर, उसने मुझे काट दिया ऐसे, क्योंकि दैट्स 3 वर्ड्स, यू फेल टू आंसर माय क्वेश्चन, रिजेक्टेड। और मैं इतना परेशान हो गई थी क्योंकि ऐसा मुझसे कभी किसी ने किया ही नहीं था। फिर देन टेक्निकली सोचो तो आई मीन दे वर 3 वर्ड्स, ठीक है। और मुझे आइडिया ही नहीं था कि सारी स्टेजेस क्लियर करने के बाद जो मतलब ऐसी बस फॉर्मेलिटी वाला वैल्यू फिट इंटरव्यू भी नहीं था, वो बस वेलकम इंटरव्यू था, उस पर वो मुझे इस बात पे रिजेक्ट करेगी। और उसने मुझे बोला कि यू आर अप्लाइंग फॉर अ वेरी सीनियर रोल, और इफ यू नॉट एबल टू टेल द बोर्ड a summary in one sentence, then you're failing at your job, so sorry। और उसने मुझे इस चीज पे रिजेक्ट किया। एक और मेरा रिजेक्शन ऐसे हुआ कि मेरी क्रेजी एप्लीकेशन चल रही थी, और मैंने जो शुरू में एक्सपेक्टेड सैलरी बोली थी बिफोर आई केम टू जर्मनी, वो बहुत कम थी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था यहाँ कितनी अच्छी सैलरीज है, क्योंकि मैं हंगरी से आ रही थी। और लाइक थ्रू ऑल दिस प्रोसेसेस मुझे आइडिया हो गया था। तो जब उसने फाइनल इंटरव्यू में मुझसे पूछा कि व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, पार्शली मैं भूल भी गई थी कि मैंने उनको एग्जैक्टली क्या कहा है। और थोड़ा सा मुझे ये पता था कि अब मेरे इंटरव्यूज क्लियर हो गए हैं, तो मे बी नाउ इज द टाइम टू नेगोशिएट। मैंने इस दफा थोड़ा ज्यादा बोला। और मुझे इस चीज पे रिजेक्ट किया कि आपकी इनिशियल सैलरी अभी वाली से मैच नहीं करती, सो यू नॉट स्टेइंग ट्रू टू योर वर्ड टाइप वाली चीज पे से मुझे रिजेक्ट किया। तो इस तरह गलतियां तो पूछा है, आप उसको बिल्कुल टाइम बॉक्स करो इन 5 10 15 सेकंड्स एंड फॉलो डिसेंडिंग ऑर्डर। मेन चीज पहले बताओ, फिर डिटेल्स के बारे में बताओ। Sidra, any thoughts? Generally, I would also like to be a little bit encouraging here, because interview processes मैंने जितने Germany में देखे हैं, they're a lot more comfortable, friendly. They make sure you're comfortable, और वो आपसे तमीज से इंसान की तरह बात करते हैं, because पाकिस्तान में interviews can be very very rude. So make sure you be very specific, on point, within time, but also be very comfortable, because they are also very interested in getting to know you, because they have to work with you. So bus be calm, and I think otherwise you learn from your mistakes. अच्छा, एक और चीज, आप तैयारी सही से करके जाओ। जैसे मेरे जो कंसल्टेंसी टाइप के इंटरव्यूज थे, लाइक कुछ केस स्टडी इंटरव्यूज थे, आई रिमेम्बर मुझे पूरी पूरी बुक्स पढ़नी पड़ी थी जो बीसी जो मैकेंजी की होती है, हाउ टू डू कंसल्टेंसी केस स्टडीज, ठीक है। और Amir, इसके please. अलावा Yeah, sorry. लोग इनफ नहीं पढ़ के जाते, लेकिन मुझे अपने सारे इंटरव्यूज के बारे में लिंक्डइन से पता था। और उन लोग के पास यूजली चेकलिस्ट होती है जो कंपनी की वैल्यूज ही होती है, और वो ऑनेस्टली हर चीज घुमा फिरा के बेशक टेक्निकली क्यों ना हो, वो उसी वैल्यू में ही फिट इन करना चाह रहे होते हैं। तो अगर आप आउट ऑफ 5 एक भी बंदा आपको वैल्यू मैच नहीं करेगा, आप तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। Thanks, Amma. Shami, please talk about the salary expected, how to negotiate, and where to look out for average salaries. Yes, Glassdoor is a place. Glassdoor, Payscale, levels.fyi, comparably काफ़ी sites हैं, और काफ़ी fair enough estimate मिल जाता है। हमने already salary ranges की बात तो कर ली थी। Negotiation का tactic होता है, I know that's far down the funnel, but just for about 10 seconds I speak on it कि अगर आपको पहले आप उनको salary एक range quote करो, ask them for their range if they're willing, because होता है इस तरह, they have a range of about 10-15K, maybe even more। इंटरव्यू के बाद आपको प्लेस करेंगे ऑन अ सर्टेन परसेंटाइल, फिर उसके हिसाब से ऑफर करेंगे, एंड देन वंस यू गेट द ऑफर, आस्क फॉर अ डे, गो बैक टू योर ड्राइंग बोर्ड एंड देन हैव अ नेगोशिएशन कॉल, प्रॉपर कॉल, वीडियो कॉल आफ्टर अ डे वेयर यू कैन नेगोशिएट। ऐसा होता है, जूनियर रोल्स के लिए नहीं होता बहुत ज्यादा, बट मिडिल या सीनियर रोल्स के लिए होता है। All right, thanks. So we are 1 hour 33 minutes into this session. Last 3 questions. Prospects of studying in EU and उसके क्या international recognition है? कुछ फायदा है EU में पढ़ने का, या हम या US, कनाडा, इंग्लैंड, यूके चले जाएं? सिद्रा, आप बताएंगे कुछ इसके ऊपर? आई थिंक फायदा सबसे ज्यादा ये है कि आपको कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का बहुत डिफरेंस है, बिकॉज अगर आप दूसरी कंट्रीज में जाते हैं तो यू हैव टू अप फ्रंट पे अ लॉट ऑफ मनी। और जर्मनी, और दूसरी बात है वहाँ जो आप एक्सपीरियंस या वर्क एक्सपीरियंस करते हो व्हाइल यू आर स्टडीइंग, वो यूजुअली इतना हैवी नहीं होता। यहाँ पे जर्मनी स्पेशल है, या इवन आई थिंक अदर यूरोपियन कंट्रीज में
You can study at very good schools for a very minimum amount usually, और आप साथ साथ अपना वर्क एक्सपीरियंस बिल्ड कर सकते हो, आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो. अगर आपको इवन अपनी थोड़ी चेंज करनी है फील्ड, आप साथ साथ वो पढ़ो भी, बट साथ साथ आप जॉब्स कर लो, इंटर्नशिप्स कर लो, जिससे आपका एक्सपीरियंस में ऐड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्टेड आउट विद फाइनेंस बट आई हैव नथिंग टू डू विद फाइनेंस राइट नाउ. तो वो सिर्फ इसलिए शिफ्ट पॉसिबल हो पाया बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वर्किंग, और उसमें आप बेसिकली आपके पास इतना ज्यादा पैसे ना भी हो, या अगर आप पैसे लाओ भी इनिशियली, तो आप वो वर्किंग स्टूडेंट या उससे कवर कर सकते हो, और बेसिकली आप अपनी पढ़ाई खुद ही यहाँ पे फाइनेंस कर सकते हो while you are studying. It's about, can somebody shift with a family of 5 if it comes to Germany? If yes, what's the overall expense? आई थिंक मैं इसमें बस ऐड कर सकता हूँ कि ज़ाहिर है मैं यहाँ पे अपनी वाइफ के साथ ही रह रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कौन से आप शहर में जा रहे हो और आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं. आप ऑन अ जॉब आ रहे हो या एज स्टूडेंट आ रहे हो. वी कैन अलाइन ऑफलाइन इसके ऊपर अगर और डिटेल्स चाहिए हो, बट इसके ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानी फेसबुक ग्रुप्स और ऑनलाइन भी होती है. आई होप दैट हेल्प्स. Which, yes, Sama, please. आई थिंक जो मैंने क्वेश्चंस पढ़े थे, से ज़्यादा कंफ्यूजन ये था कि लोग पूछ रहे थे कि मैं अपने एनालिटिक्स स्किल्स कैसे जॉब पे अप्लाई करती हूँ इन अ बिजनेस सेंस. आई थिंक शामिर, अगर मे बी आप थोड़ी सी एग्जांपल्स दे सको कि आप प्रोडक्ट के कौन से डिसीजंस लेते हो जो लाइक बिजनेस डिसीजंस होते हैं. यार हाँ, ये बस मैं ऐड करना चाहूँगा कि कम्प्लीटली एक सपोर्ट रोल नहीं होता. आप ड्राइविंग सीट में हो सकते हो डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ कंपनी और जो आपका स्ट्रक्चर है. तो आप जो है जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, वी सी एट आई लेवल विद पीएम्स या हेड्स. फॉर एग्जांपल हेड ऑफ प्रोडक्ट वुड बी एट आई लेवल विद हेड ऑफ एनालिटिक्स, इस तरह. तो वो अगेन प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो वी कैन टॉक अ लॉट अबाउट इट, बट डेफिनेटली एक रिवॉर्डिंग फील्ड है एंड कंप्लीट करियर पाथ भी इसके अंदर बन सकता है इन द टेक्निकल या स्टेम डिग्रीज या फिर एनालिटिक्स के अंदर, और जो है आप स्विच भी कर सकते हो लेटर ऑन. तो इट्स ऑलवेज अ गुड बिल्डिंग ब्लॉक एज वेल और अ करियर इन इटसेल्फ. Job prospects of business graduate who is pursuing his master's in business information systems. यार हाँ, बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में एक हमारा एक्सचेंज भी होता था HKU के अंदर, मेरी जो मास्टर्स की यूनिवर्सिटी थी. रियली डिपेंड्स अगर आपको कौन सी जॉब्स चाहिए. इट कैन ओपन अप डोर्स टू BI एनालिस्ट, इवन डेटा एनालिस्ट एज वेल. और आई वुड से वो उसी तरह का है. I wouldn't say वो data engineering के aspects खोलेगा because that's more towards the software engineering family, but definitely इसके job prospects तो मैंने देखे हैं and they have partner programs. इसमें मैं ये बोलूँगा कि business information systems will be more of a link between the IT people and the business people. तो ये वहाँ के बीच में जो product owner type लोग होते हैं ना, this is where they will fit more. Any thoughts on this, Sidra? Yeah, I think that's completely true. जो masters in business information system होते हैं, they are somewhat between IT और उनकी जो business की requirements होते हैं, they're translating to the IT. तो वो बीच के middleman होते हैं, तो उनके पास थोड़ी IT वाली information भी होती है, लेकिन थोड़ा business वाला skill set भी होता है, तो वो वाला थोड़ा different role होता है उसका. जी समा. Also with these, बुडापेस्ट में काफी पॉपुलर डिग्री थी ये बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की, लेकिन इसमें इशू ये होता था कि वो स्किल्स नहीं सिखाते थे जो आपको चाहिए होती थी फॉर द जॉब्स यू वांटेड टू अप्लाई फॉर. तो इन दी एंड वो इंटरव्यूज में फिर वो लोग बहुत सफर करते थे. वो फिर बाद में कहते थे, ओ अच्छा तुम लोग को यूनिवर्सिटी ने ये सिखाया है, और हमें नहीं सिखाया, तो हमसे इंटरव्यू नहीं क्लियर हो रहे. तो आई वुड से कि आप कोर्स आउटलाइन देखो, हर यूनिवर्सिटी के सेम कोर्सेज नहीं होते फॉर एवरी मास्टर्स डिग्री नेम. All right, last question from Sidra is about जो हमजा ने अभी क्वेश्चन पूछा है कि अगर मुझे एनालिटिक्स में एक्सपीरियंस है, मैं यार you would have to see कि आप MBA से क्या सीखना चाह रहे हो और what value would it add to yourself. I can't give a yes or no answer to that. You will have to see. Yeah, I'm not sure. Samir, maybe you have an answer. एक चीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ, अगर आप एनालिटिक्स ही परस्यू करना चाह रहे हो, so it's always better to go for MSc एनालिटिक्स. बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेशलाइज्ड हो गई हैं जॉब फैमिलीज, सो इट्स ऑलवेज गुड टू डू दैट. MBA में ज़्यादा कंसल्टिंग की तरफ आपका रोल आएगा, और ऑब्वियसली एक स्पेशलाइजेशन डेटा हो सकता है, बट जो MBA टैग के आप पीछे जा रहे हो वो हो सकता है आपको एनालिटिक्स जॉब फैमिली में इतना नहीं फ़ायदा दे कंपेयर टू MSc डेटा साइंस और एनालिटिक्स. प्लस मैं एक और चीज़ बस ऐड कर लूँ एज अ लास्ट कमेंट, जो क्वेश्चंस आ रहे थे, एज समा पॉइंटेड आउट, के टाइप ऑफ वर्क क्या होता है. मे बी दैट आल्सो हेल्प्स इस MBA डिस्कशन में, कि आप मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होते हो फॉर द होल कस्टमर जर्नी, फॉर द फनल. एनालिटिक्स की बात कर रहा हूँ,
for customer churn और जो है various optimization techniques आपको लगानी होती हैं, statistical modeling होती है, ETL process चलाने, ये बहुत different है MBA से, जहाँ पे ज़्यादातर आप market sizing, consulting वाले projects करोगे. So maybe that helps you. Thanks, Shamir. So I hope this whole discussion was very helpful for you guys. There are a couple of more points which I would like to add. If you are a student and if you want to know how to start to study in Germany, what could be your like first step? On my channel, I created a video on how to do this, and you can just go write on YouTube Sefu Germany, and you will find the video on each and every chapter. I have divided the whole discussion in each and every chapter. You can go and see what's happening and how to do it. Second, I have another video about how to write a very good motivation letter. Maybe that can also help you and help you write a good motivation letter. And yes, that's all, I guess. If there are no more questions, then thanks a lot, guys. Thank you, everybody. Thank Very you. good session, very engaging audience. Thank you. Yeah. Have a nice day, everyone. Yes, I will send the CV over email.